of 2021. My lord. जी ये कितने केसेस हैं? My lord, SMC 4 of 2021, SMC 5 of 2021, and then we have CP 27. अच्छा, SMC 4 किसने फाइल किया है? SMC 4, my lord, this was notice which was taken on the application by Mr. Qayyum Siddiqui and Mr. Asadpur. जी Mr. Qayyum Siddiqui, my lord. SMC 4 एक एक जरा देख लेते हैं पहले. अच्छा, इसमें Mr. Qayyum Siddiqui was the applicant and Mr. Asad Ali Toor. नहीं, ये बताएं क्यों कौन कौन इसमें? नहीं, 5 हैं जी. इसमें पहले नंबर पे हैं अमजद नज़ीर भट्टी, प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. That's right. पेज 8 पे पढ़ दें. प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अब सदर कौन है? अमजद नज़ीर भट्टी साहब मौजूद है या नहीं है? सर उनका टेन्योर खत्म हो गया था, अभी मैं न्यूली इलेक्टेड हुआ हूँ सर. आप आए हैं जी. आपका इसमें ग्रामी अकील अफजल. अकील अफजल. जी साहब, ये एसएमसी नंबर 5 ऑफ 2021 में जो एक ऑर्डर है 11/1/2023 का, My lord. उसके मुताबिक तो इस वक्त कोई केस पेंडिंग नहीं था जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है. My lord, as All far as inquiries and cases registered against the journalists have been disposed of. My lord, as far as There is no inquiry or case is pending at present. तो ये as far as FI is concerned, FI had. मगर ये जरा खत्म करने मैं देखना चाहता हूँ कौन किसने क्या फाइल My किया. lord. अगर ये हमें पता चल जाए, ये एक तो हो गए प्रेसिडेंट जी, और and then- दूसरे हो गए अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, जी, एक्स प्रेसिडेंट. जी, ये Mr. मौजूद हैं. अच्छा, ओके. फिर And then- तीसरे हो गए इमरान शफकत साहब. Imran Shafkat, and then चौथे हो गए Amir Mir. आमिर Mir. Amir Mir. ये मौजूद है. I'm representing Amir Mir. अच्छा, And और पांचवें हो गए असद तूर जर्नलिस्ट, मौजूद है. ये मौजूद है. अच्छा जी. अच्छा, दूसरा एक तो ये केस हो गया. दूसरा है SMC 5, वो किसने फाइल किया है? SMC 5, my lord, we had ये वो है अपना इसमें ये हुआ. जी, ये सैयद इब्ने हसनैन एंड अदर्स. yes. My Sayyid Ibn Hassan and others is CP 27, and as far as SMC 5 is concerned, it was again Mr. Amir Mir and Mr. Imran Shafkat. ये pursuant to FIR number 127 of 2021 and FIR number 128 of 2021. My lord, same journalist. ये 5 है. जी, 5 में भी Mr. नहीं, Amjad. ये कोई इदारा है, फाइल देख. डिफेंस ऑफ. No, नहीं, इसमें SMC 5 is again notices were issued to the same 5 journalists. ये कोई खत है जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी, जी, 10 अगस्त 2021 प्रेस स्टेटमेंट. इस पे बना है SMC 5. ये कौन थे? उसका नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है कोऑर्डिनेटर. कुछ नवाज हैं, उस्मान नवाज या कुछ ऐसा नाम है. ये कौन थे? Ahmed Nawaz Chaudhry was the AOR. नहीं, ये डिफेंस, इसमें आप खत देखिए, एक जो लगा हुआ है वो तो वही दोहराया गया है ऊपर. ये आपके पास है ये खत? I don't have a copy. पेज 8 पे ये इनको दिखाएं. ये वाला ये है ये डिफेंस जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी. ये इसकी डेट है 5 में लगा हुआ है. सेक्शन कौन सा? 10 अगस्त 2021. जी. इसमें लिखा है ऑन 29 सितंबर 2020. On this is my lord on 21st June. नहीं, एक सेकंड जी.
Ji, my lord. This is 10th of August 2021, sir. Dated 10th of August 2021. This is a press statement. یہ پڑھ دیں تھوڑا سا. On 29 September 2020, the Pakistan Bar Council's Journalist Defense Committee was established in response to the increasing... پاکستان بار کاؤنسل کی ہے یہ. Ji. In response to the increasing clampdown on journalists and media, on 9 October, this committee was further expanded. اس میں یہ صرف میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں یہ اس کیس میں کون My lord, پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے آپ ہیں, کون ہے اس میں, کوئی ہے ڈیفنس جرنلسٹ کمیٹی کی طرف سے؟ Gee, that committee does not exist anymore. SMC 5 تو اس میں ہے. چلیں اب آخری کیس آ جائیں. This is CP number 27. SMC 5 کی یہ فائل کیا ہے حیدر وحید صاحب نے؟ جی. ہاں حیدر وحید صاحب کراچی میں. حیدر وحید صاحب فرمائیے یہ کیا کیس ہے؟ اسی طرح کی اگر ڈائریکشن گورنمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ یونیفارم ایپلیکیشن. نہیں یہ آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ تو پیمرا نے بنایا ہوا ہے نا, وہ تو جو سیٹلائٹ ٹی وی ہے اور کیبل کے ٹی وی آپریٹرز ہیں ان کے لیے ہے وہ. بالکل سر. ایک سیکنڈ آپ کی ذرا وہ بتائیں پریئر کیا ہے, آپ مانگ کے آنے عدالت سے؟ پیج 29 پہ ہے نا؟ جی سر. پڑھ دیں ذرا. سر اس میں اگر ہم ڈی دیکھ لیں, ویسے تو ایک سے میں شروع کروں گا, بٹ واٹ دا پوائنٹ آئی ایم ریئلی ٹرائنگ ٹو پریس از اونلی سنگولر کہ جو آرٹیکل 19 ہے سر اس کی اپلیکیبلٹی ایسے تو نہیں ہے کہ آپ ذرا پڑھ دیں نا, آپ اپنی ذرا آپ پڑھ تو دیجیے. وی لاگ میں اگر آپ میں نہیں کہہ رہا آپ زیادہ کم کریں, بٹ یہ تو کوڈ آپ بحث تو نہ کریں نا, ہم تو صرف آپ سے کہہ رہے ہیں پڑھ دیجیے. بحث سنیں گے, آپ کی تسلی رکھیں, بحث آپ کی سن لیں گے. ابھی آپ پڑھ دیں 29 پیج پہ, آپ مانگ کہہ رہے ہیں عدالت سے, پڑھ لیجئے. میں پڑھ لیتا ہوں سر آپ کی اجازت سے. Declare that the unequal and disparate population of speech on various media آپ غلط پڑھ رہے ہیں, آپ غلط پڑھ رہے ہیں. ذرا توجہ بھی دیجئے نا اس طرف. لفظ پہلا لفظ ہے ڈائریکٹ, آپ ڈکلیئر پڑھ رہے ہیں. سوری سر, وہ آپ یہ پڑھ, میں اس سے پڑھ دیتا ہوں. ڈائریکٹ دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو پریپیئر اینڈ امپلیمنٹ اسپیسیفک کوڈ آف کنڈکٹ پروہیبٹنگ انسٹیٹیوشنل ڈیفیمیشن اینڈ ڈیفیمیشن اگینسٹ آہستہ اگر آپ ذرا پاکستان آہستہ پڑھیے جناب, ذرا کہ ہم سن تو سکیں. آپ کوئی جلدی میں کوئی اور کیس لگا ہوا ہے آپ کا؟ نہیں سر, اس سے ذرا تسلی سے پڑھیے, آرام سے پڑھے. حیدر آپ کو آواز آ رہی ہے نا وہاں پہ؟ آرام سے پڑھیں گے, سمجھ تو لیں ہم لوگ. جی سر, اب پھر پڑھ دیتا ہوں. ایک لاء سے پڑھیے. جی سر. Direct the federal government to prepare and implement a specific code of conduct prohibiting institutional defamation and defamation against public servants, government functionaries and office bearers in the service of Pakistan in line with Article 19 of the Constitution of 1973. B. Direct the federal government to review all existing laws regulating speech and take appropriate measures to prohibit institutional defamation and where necessary enact legislation in line with Article 19 of the Constitution of 1973. C. Direct the respondents to obey and uniformly implement Article 19 of the Constitution of Pakistan 1973 in letter and spirit without discrimination when discharging their functions and duties. D. Declare the unequal and disparate regulation of speech on various media, broadcast, digital and print is discriminatory and violative of Article 19 and 25 of the Constitution of Pakistan 1973. E. Direct the federal government to engage in meaningful consultation with all relevant authorities with a view to introduce legislation in Parliament for uniform regulation of all media, broadcast, digital and print by unitary regulator in line with Article 19 of the Constitution of Pakistan of 1973. ٹھیک ہے, اب ہم نے سن لی, اب آپ سے بعد میں بات کریں گے. یہ سب سے پہلے نمبر ہے 4 نمبر. یہ قیوم صدیقی صاحب خود چلائیں گے, کون چلائے گا کیس؟
या सदर प्रेस एसोसिएशन चलाना चाहते हैं, जो भी चलाना चाहते हैं। अच्छा, मैं सदर को तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पार्टी मैं कुछ फैक्ट्स मैं वो आपके उस पर लाना चाह रहा था। इसमें एक पांच आपके देखिए, अब इसमें जो जरा सी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, वो देखिए ना कुदरत का निज़ाम कैसा होता है। ये केस सुमोटो हमने लिया था अदालत में। जी हाँ जी, 2 मेंबर बेंच ने। जी हाँ। फिर ये चला गया किस जरिए मुझे नहीं पता, हमें भी नहीं पता सर। ठीक है, वो चला गया कि 5 मेंबर बेंच के सामने। जी हाँ। 5 मेंबर बेंच का फैसला है, ये रिपोर्ट हुआ है PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 306 में, और 2 मेंबर बेंच का फैसला है 2021 SCMR 1602। अब ये 5 मेंबर बेंच के पास चला गया और सिर्फ आपकी सारी राय नहीं होती है, जजेस की भी होती है। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन ठहर जाइए। तो 5 मेंबर बेंच ने कहा कि सिर्फ एक शख्स यानी कि चीफ जस्टिस ही ये तयन कर सकता है कि 184(3) के यानी कि जो मुकदमे जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और जो अवाम से मुंसलिक हैं वो इस बात की नोटिस ले सकते हैं। तो ये फैसला हुआ। इसके बाद अब आ जाते हैं इस पे आपकी पिटिशन के सफ़ा नंबर। फिर ये चीफ जस्टिस को के सामने रखा गया और उन्होंने जिंदा किया गया इसको, उसके लिए बेंच तश्कील दी, 3 मेंबर बेंच तश्कील दी गई। और फिर वहाँ क्या हुआ, कोई ऑर्डर है कि आपका कहना था कि मैं नहीं चलाना चाहता हूँ केस। इसलिए मैंने कहा कुछ फैक्ट्स आपको बता दें कि जब एक बेंच ने इसके बाद जरा सी मैं पूरी वजाहत कर दूं, ये वहाँ रखा गया तो ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका नंबर पड़े और इसको चलाया जाए, तो ये केस आज दिन तक सर्द खाने में रखा हुआ था। जी हाँ, हुआ ये था कि जब ये पहले हमारी जो दरख्वास्त थी जिसपे 2 मेंबर बेंच ने कॉग्निजेंस लिया था, उसके बाद ये 5 मेंबर बेंच बता दी आपकी सारी बात। अब आपका मसला क्या था? उसके बाद जो जब ये दोबारा 2 नंबर बेंच के सामने लगा, 3 जजेस के सामने, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, नाम छोड़ दीजिए ना और जस्टिस आप अपना मसला बताएं ना। अब हम बाकी बातें तो मैंने वहाँ पे ये कहा था कि जिस तरह से ये मुकदमा दूसरे बेंच, मुकदमा छोड़ दीजिए, अब बताएं आपका मसला उस वक्त क्या था। देखिए वहाँ से शुरू करेंगे ना। ये ऑर्डर आपको मैंने बताया ना, आखिरी ऑर्डर इसमें है 11/1/2023 का। उसमें वो कहते हैं कि सारी इंक्वायरीज खत्म हो गई हैं, सारे एक्शंस ड्रॉप हो गए। अगर तो ये बात ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट नो, देयर इज आल्सो रिपोर्ट ऑफ FIA। अगर तो आप उस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है या है, ये तो ये बात है माजी की हद तक। और अगर कोई नया कॉज ऑफ एक्शन आपका है तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। अगर कोई नई चीज हुई है तो उसके लिए तो बात की जा सकती है। आपकी दरखास्त जरा पढ़ देते हैं। मेरे ख्याल में इनको पढ़ने दें अटॉर्नी जनरल को। इनकी दरखास्त क्या थी कोर्ट में 184(3) के? माय लॉर्ड, सफ़ा नंबर 5 पे है। माय लॉर्ड, दिस इज जरा तारीख भी देखिए, कौन सी तारीख है? दिस इज 20th of August 2021. जी, and this is, my lord, this was पढ़िए जी. Petition under Article 184. Petition under Article 184(3) of the Constitution, it is humbly submitted as 1. We are practicing journalists and most of us rely upon journalism as our source of livelihood. 2. Most of us were working in media, television and newspapers but were sacked because we would honestly report the news. These sackings took place on the behest of outsiders. It is an open secret who they are. These persons would not write a letter to submit a formal complaint. They would generally just make a WhatsApp call and threaten the newspaper or the television channel where we were employed, that if we were not laid off, there would be serious consequences for the management and that they may even shut down the news channel. Faced with these threats, which have often been carried out, the management of the media houses where we work were left with no option but to sack us. 3.
Many a time we took no issue and told them that the founder of the country, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, had fought against laws which curtailed media freedom and that he advocated a free media, but we were told that Quaid-e-Azam was dead and that we run the country now. After losing our jobs, many of us, in order to support ourselves and our families, started doing news shows on YouTube and on other social media platforms, but here too we were harassed, intimidated, picked up, beaten, shot at and killed. Even the reports of our abductions, beatings and shot at were not allowed to be published on mainstream media. Very few newspapers would do so, and if they did so, would have to suffer the consequences. They were cut off from government-sponsored advertisements and otherwise intimidated. Some of the reports are attached. 4. The situation has become so dire that departments and institutions of the state which are supposed to protect us are being used to lodge false cases against us. In this, the Federal Investigation Agency, FIA, has resorted to lodging baseless and unfounded cases against reputable senior journalists. Copies of such false cases are attached. 5. We are citizens of Pakistan, but now are unable to live, breathe, and work freely, and a number of our fundamental rights, which we were entitled to, are smashed and taken away from us. Our life and liberty is rendered meaningless, and in doing so, Article 9 of the Constitution violated. 6. We have been enslaved because we are told that we must not write, and if we write, what we should write. This is slavery. Slavery is forbidden in Article 11 of the Constitution. 7. Our mobile phones and computers are illegally snatched away. These phones and laptops contain personal information as well as information relayed to us through confidential sources. In accessing our personal mobile phones and computers, those who bring forward wrongdoing and blow the whistle on illegalities are now exposed. In snatching away our phones and laptops, Article 13 of the Constitution is violated, which categorically states that self-incrimination is not permissible. 8. Our dignity and privacy are violated every day, and Article 14(1) violated. Thugs barge into our homes, hold us at gunpoint, beat us and take us away. The constitutional guarantee of dignity of man and privacy of home has been destroyed. 9. We are also tortured to extract information. Torture is prohibited by Article 14(2) of the Constitution, but we are tortured. 10. Our freedom of movement is also curtailed, as we can be picked up at any time from any place, and then the lucky ones who are not killed are dropped off at remote locations. The perpetrators openly violate our fundamental right of freedom of movement, Article 15 of the Constitution. 11. Our lives are becoming intolerable. We are prohibited from speaking out or printing the truth because it may be inconvenient for the state-backed players. A well-known journalist recently said that state of press freedom completely rotten in Pakistan. The bullying tactics, the physical violence, and the threats have made it impossible for us to conduct our profession, and as such we are deprived of this fundamental right enshrined in Article 18 of the Constitution. 12. The Constitution also guarantees freedom of speech, freedom of expression, and freedom of the press. But shadowy players and now state departments such as FIA and intelligence agencies have rendered Article 19 of the Constitution meaningless. 13. The Constitution also guarantees the right to information in Article 19A. But rather than providing us access to information, we are not allowed to write, print, or publish information that we have. 14. By taking away the tools of our trade, that is our mobile phones, our computers and recording devices, our right to own property stipulated in Article 23 of the Constitution is also violated. And so is our protection of property rights enshrined in Article 24(1) of the Constitution. 15. The fundamental right of equality of citizens is also violated because our competitors who sing the praises of the state-backed players and the government are given resource and are rolling in wealth, but we who are committed to the truth are penalized for it. 16. Independent journalists also provide information and education, and the right to education is a fundamental right in Article 25A of the Constitution. 17. We are also not allowed to abide by the principles of Islam, which provides that it is the duty of Muslims to point out wrongdoing, and that to speak a word of truth to an unjust ruler is Jihad Akbar. However, we are not permitted to speak the truth, therefore we cannot live our lives in accordance with the injunctions of Islam. 18.
Pakistan was founded by the greatest constitutional mind, but is now compared with the most draconian and dictatorial countries in the world in terms of freedom index and freedom of the press. Please see the attached Pakistan Press Freedom 2021. The report released by the Freedom Network states, a dramatic escalation in the climate of intimidation and harassment of media and its practitioners adversely affecting freedom of expression and access to information environment was discovered. 19. Pakistan is ranked 145th position in Reporters Without Borders 2021 Global Press Freedom Ranking. The government is maligning the state of Pakistan and it is pushing it to pariah state internationally. The actions of the government are also ensuring that Pakistan either stays on FATF's grey list or is pushed into the blacklist. The state of Pakistan takes precedence over the government and every agency working under the state. 20. We have no other recourse but to turn this to this honorable court to not only protect us but to protect the very foundation of the Islamic Republic of Pakistan. We therefore most humbly request that this honorable court be pleased to initiate action to ensure our fundamental rights and also to take appropriate action against all those who are violating our fundamental rights and causing the deteriorating landscape for press freedom in Pakistan. The report released by the Freedom Network states a dramatic escalation in the climate of intimidation and harassment of media and its practitioners adversely affecting freedom of expression and access to information environment was discovered. 19. I think that this is repetition. So it ends at the previous page with the prayer, my Lord. Yeah. नहीं मगर ये जो इनकी कंप्लेंट को फिर देखा ही नहीं गया जी देखा गया या नहीं देखा गया Your Lordship. Your Lordship passed an order. एक ऑर्डर पास किया था उसने कौन सा order? मेरे ख्याल में This is dated 20th of August. टू मेंबर बेंच का ऑर्डर 20th of August 2021 by 2 members. नहीं ये तो नोटिस वाला था इसके बाद क्या हुआ उसके बाद तो फिर वो हुआ 5 मेंबर फिर हुआ कि चीफ जस्टिस फिर वापस जिंदा हो गया केस जब वापस जिंदा फिर क्या हुआ उसके बाद कोई कार्रवाई हुई इसमें और जब वापस जिंदा हुआ तो हमने ये कहा था कि क्योंकि ये अदालती तारीख में किस जुरिस्डिक्शन में आया तो आई मीन पेन के भी हमारी अदालती तारीख में क्या हुआ तो वन ऑफ द लर्नड जज जो है उन्होंने कहा कि आप मिस्टर सिद्दीकी आप हटें यहाँ से हिस्ट्री फैसला करेगी तो फिर उस पर हमने कहा था कि मैं फिर अपना मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ता हूँ एंड देन हम जो है वो साइड पे हो गए थे इसमें ऑर्डर तो है 13/9/2021 का भी एक ऑर्डर है उसी बेंच का जी हाँ उन्होंने डिटेल्स मांगी सारी 13 ये SMC 5 में ऑर्डर है 13/9 का ऑर्डर दिखाइए 13/9/2021 का इसमें पैराग्राफ 2 में उन्होंने कहा है कि ऑन क्वेरी ऑफ द डायरेक्टर जनरल FIA who is present in court submits that My Lord, this was in SMC 5, not SMC 4. वो ऑर्डर तो कलेक्टिवली है ना जी वो तो सारा उसको पूरे 13/9 को टेकर पढ़ने 5 का ऑर्डर जी इससे 13 कौन से सफे आप पढ़ेंगे ऑर्डर 13th of September 21 in SMC number 5 of 2021, 3-member bench. Pursuant to our last order dated 30th of August 2021, a report has been filed by the Registrar of the Islamabad High Court. Let a copy of the report be handed over to the learned Attorney General for Pakistan, who shall go through the same and assist us in the matter on the next date of hearing, especially as to whether, on account of any overlap of the issues involved in the petitions pending before the High Court and those raised or likely to arise in these proceedings, or for any other reason, it would be necessary or appropriate for this court to pass any orders in relation to the matters pending before the High Court. 2. On our query, the Director General, Federal Investigation Agency, who is present in court, submits that in the past 4 years, 27 cases have been reported to FIA, out of which 4 have been converted into inquiries, leading to the lodging of FIRs, and others remain at complaint stage, some of which are still being processed. We therefore direct the DG FIA to file a comprehensive report inter alia providing the following details information. 1. The FIRs. 2. How the said FIRs have been lodged and what process was followed in doing so. 3. What proceedings have been taken and if any accused has been arrested. 4. If matters have gone to the courts, what are the stages? मगर ये तो इनकी इस्तदा थी नहीं जहाँ तक मुझे समझ आया ये तो पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं इनका कहना था कि जी व्हाट्सएप कॉल पे धमकी देके गोली मार के हम पर तशद्दुद किया जा रहा है मतलब ये मैं समझ पा रहा हूँ इनकी कंप्लेंट से
उसमें ये तो उल्टा कंप्लेनेंट अक्यूज में एक तरह से बन गए। And I, personally speaking, नहीं तो ये मैटर जिंदा है अभी। so essentially, देखिए आप एक बात बहुत, अब आप बुनियादी बातें से शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 से पढ़िए जरा। my lord, every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of the glory of Islam or the integrity, security, or defense of Pakistan or any part thereof. Friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission of or incitement to an offense. देखिए या तो सरकार कहती कि ये जो इन्होंने इस्तदा की थी वो एक्सेप्शंस में आ रहे हैं, तो वो तो एक अलग बात है। ये कहना कि जी FI दिखाएं कि क्या पे केसेस हैं, पता नहीं क्या दिखाया उन्होंने, मतलब या तो बुनियादी हकूक को जिंदा करें या कागजी कार्रवाई में रखते हैं बस किताब में खूब सजा करके, तो ये केस भी दफन हो गया और इसके साथ बुनियादी हकूक भी दफन हो गए। मतलब सॉरी, ये मैं तो अपने भी इंस्टीट्यूशन पे बात करूंगा कि इतना अहम केस, या तो झूठा केस है फौरन फारिग करें, फाइन लगा दें कंप्लेनेंट पे, या अगर है सच्चा तो फिर आगे बढ़े। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल कैसे ये केस शिफ्ट हो गया तो और भी अदालत मंगा ले, जैसे जनरल। सो ये केस जो है ये कैसे, वो तो अलग बात है ना, मगर केस तो फिर भी चलना तो चाहिए ना। वो चीफ जस्टिस साहब ने 3 मेंबर बेंच बना दी, चलिए केस फिर चला, लगता क्यों नहीं है केस। ये देखिए ना, ये तो बार बार मैं कह रहा हूँ कब तक हम माजी की गलतियों को दोहराएंगे। हम तो तैयार हैं गलती तस्लीम करना, यहाँ तो भाई माफी मांगने की बात दूर की, तस्लीम तो कोई कर लेना अपनी गलतियां। यहाँ तो मौका बस देखा जाता है, एक मौके में मेरा फायदा हो रहा है तो ठीक है। सर रजिस्ट्रार ऑफिस से बता सकते हैं कि क्यों नहीं लगा? हम खुद कह रहे हैं ना, हम इसमें गुनाहगार हैं कि केस नहीं लगा। क्यों ना हम सच बोलें? मैं सब गलतियां अपने सर पे उठाऊं? बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हुई, आप मुझ पे उंगली उठाइए, या अगर आपने उंगली मुझ पे नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी। मतलब आप तनकीद करेंगे तो मेरी इस्लाह होगी, अगर नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगी। अब ये देखिए, ये अहम, अब पता नहीं किसको मारा गया, किसको मारा गया गोली हुआ इसके गोली किसको मारी गई थी? अफसार आलम साहब को, और असदूर को जो है वो इनके घर में घुस के मारा गया था। मतीउल्लाह जान किडनैप हो चुके हुए थे, जबकि उनका केस कंटेम्प्ट का एक लगा हुआ था। उससे एक दिन पहले मतीउल्लाह जान को एब्डक्ट कर लिया गया था। हम उस वक्त की चीफ जस्टिस के पास दरखास्त लेने, उनसे कोई रिलीफ लेने के लिए हमने, जैसे कल परसों आपसे मुलाकात की प्रेस एसोसिएशन में, हमने भी चाहा उनसे कि जस्टिस गुलजार साहब अब क्या करें, नाम लेना पड़ता है साबिक चीफ जस्टिस का, तो हमें एक्सेस नहीं दी गई। बस आप साबिक ही कह लें, बेहतर है। मौजूदा पे आप तनकीद करें, साबिक पे तनकीद ना करें। मेरे लिए तो दोनों ऑनरेबल हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। तो उसके बाद जो है ये मामला था, मतीउल्लाह का लगा हुआ था, एक दिन पहले वो किडनैप हो गए। उसके बाद असदूर के साथ ये वाकया हुआ, फिर इमरान शफकत, आमिर मीर जो है उनको उठा लिया गया मिस्टीरियसली। तो क्योंकि हमारी पहले नहीं सुनी गई थी, तो फिर हम जो अदालत खुली थी उसके सामने चले गए, जहां पे ये SMC 4 जो है ये आया। और फिर इसके साथ जो हुआ वो आप रिकॉर्ड मंगवा के देख सकते हैं कि क्या हुआ। नहीं लगा ही नहीं केस। फिर उसके बाद फिर ये केस नहीं लगा, और क्यों नहीं लगा इसमें अब उसके बाद तो बहुत सारा वक्त गुजर गया कि उन जो इन्वेस्टिगेशन, अब तो लॉ भी बदल गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया, वो इख्तियारात छीन लिए गए चीफ जस्टिस से और वो 3 मेंबर कमेटी बन गई। अब तो खैर वो एक तरह से वो लॉ ही चेंज हो गया, फुल कोर्ट ने उसका फैसला कर लिया, लॉ सही है। तो अब वो जो पहला तरीकेकार तो वो तो उसकी खैर किताबों में रहेगा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर ये मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक शिकायत आती है अटॉर्नी जनरल, तो वो चलती क्यों नहीं है? उसका कौन थे अटॉर्नी जनरल? आप थे।
I want to add here, my lord. जी आप कौन थे अटॉर्नी जनरल? I think Mr. Khalid Javed Khan was the Attorney General. ये इनके ग्रीवेंसेस जो भी थी उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी इनकी शिकायत थी I want to add here something, my lord. आएंगे सुनेंगे. इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि जी किस तरह ये वाकया हुआ, किस तरह ले गए, किस तरह छोड़ा, किस तरह क्या किया. My lord, the matter did not proceed. नहीं मगर मुझे देखिए दुनिया में जो जिंदा कौमें होती है ना वो अपनी माजी को देखती हैं, गलतियां होती हैं तस्लीम करती हैं. यकीनन जो शख्स उस वक्त मौजूद थे उन्होंने तो नहीं की होती मगर फिर भी कम से कम कुछ तो होता है. यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है. बस छोड़ो आगे बढ़ो मिट्टी पाओ बस. ये एक और इसी से तकवीयत मिलती है दूसरों को. में उसके बाद जो है बेंच के ऑर्डर के बाद एफआईए ने सिर्फ रिपोर्ट फाइल की है. सुनिए, सिर्फ रिपोर्ट फाइल की है कि जी इस वक्त कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, सब मामला खत्म हो गए. मगर आपकी जो अर्लियर ग्रीवेंस थी कि वो जो कुछ हुआ था उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं रिड्रेस हुआ, नॉन अकाउंटेबल है, उसके बारे में वो कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं है. एफआईए की रिपोर्ट ये है मेरे पास, यहाँ पे मैंने देखी कि सारी इंक्वायरियां खत्म हो गई हैं, इस वक्त कुछ भी पेंडिंग नहीं है. As far as उसके बाद DGFI जो concerned, Islamabad police did register. अगर आप बात वो सिर्फ ये मालूमात कर रहे थे कि सहाफियों के खिलाफ कितने केसेस इंदराज हैं. ठीक है, मैं तो कहता हूँ वो तो फिर भी निस्बतन बेहतर तरीका होता है. मगर ये जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो कह रहे हैं बगैर केस के उठा लिया, मार दिया, धक्का दे दिया, वो तो अलग बात है ना. कम से कम झूठा भी केस करें तो आप बरी तो हो सकते हैं उसमें ना, नतीजा तो कोई निकल सकता है, कुछ तो पता चल सकता है. मगर ये जो तशद्दुद जो हुआ है, इनसे पूछने असद तूर से आपको पता चला कि कौन लोग थे? Just one thing before he proceeds. Islamabad police had furnished a report and FIR was registered in Mr. Asad Toor's case. What is the outcome of the FIR? My lord, कितने लोग बेल पे हैं, कौन अरेस्ट हुआ? अननोन पर्सन्स होंगे. जी हाँ, अननोन पर्सन्स. नहीं मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं ना, ये इनसे ही पूछ लेते हैं नहीं की ज़बानी. कोई पकड़ा गया उस केस में? नहीं माय लॉर्ड, कोई नहीं उसमें गिरफ्तारी हुई थी. और आप उनकी शक्लें पहचान सकते हैं? मैं बिल्कुल पहचान सकता हूँ उनकी शक्लें. एक चीज बताइए, पुलिस वाले आपके पास आए, उनके पास एक होता है आर्टिस्ट, स्केच बनाते हैं कि भाई ये कैसा है, फिर वो अखबार में देते हैं कि इसकी हमें तलाश है. ऐसी कोई बात हुई? पुलिस वालों ने स्केच जरूर बनाया था लेकिन कोई इश्तिहार नहीं दिया था. फिंगरप्रिंट्स भी थे उनके, लेकिन उनका नादरा ने कहा नहीं शनाख्त हो रहा. इसके अलावा वो मेरे अपार्टमेंट पर अपना मोबाइल यूज कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जियो फेंसिंग नहीं की थी उस केस की. और मैंने जो FIR दी थी उसमें क्योंकि जो हमलावर थे उन्होंने खुद अपना तारुफ करवाया था कि उनका ताल्लुक ISI से है, लेकिन आज तक जुबानी कलामी भी ISI वालों के किसी का बुला के बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया. वो तरदीदी बयान ही आके रिकॉर्ड करवा देते तो शायद बेहतर होता. लेकिन तो आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या निकला, कुछ आपको पता है? शायद मे बी इट्स नॉट फेयर टू आस्क यू, आप तो आपके अटॉर्नी जनरल नहीं थे, आपको कुछ पता है कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या उन्होंने मालूमात की? My lords may kindly turn to see. भाई अगर एक शख्स कह रहा है मैं फलां इदारे से हूँ तो कम से कम हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है सच बोल रहा हो, कम से कम मालूमात तो कर सकते हैं ना कि ये शख्स आपके यहाँ काम करता है, ये उसकी तस्वीर है, ये उसके अंगूठे हैं, उनके पास तो रिकॉर्ड होगा अपने हर मुलाजिम का. चालान में क्या लिखा उन्होंने 173 की रिपोर्ट में? My lord, I have, if my lords may kindly turn to CMA 12661. This is CMA filed by Inspector General Police Islamabad. 12661. मुख्तसरन बताइए. 12661 of 2021. 2023. जब तक आप किसी को काउंटेबल नहीं करेंगे ये आज भी होगा और कल भी होगा. आप लिख लीजिए, ठीक है? मगर हम सुप्रीम कोर्ट पे जब तक मामले आते हैं तो उसमें का टाइम लग जाता है ना. 12661. इसमें देखो भाई, इसमें बंडल में निकालो. ये सफेद वाली जी. Page 6 is where page 6 जी. So this is FIR 164 in the case of Mr. Asad Ali Toor, and at page 7 जी FIR की कॉपी लगी हुई है इसमें. page 7 sir. 7 में तो कोई डब्बे बनाए हुए हैं, तो MND
MLD से क्या ताल्लुक? Sorry, I think it's CMA number 114. 114, sir. ये में 114. ये तो कुछ और है. 114, sir. अच्छा, इसमें कौन सा नंबर, सफा नंबर? So, page 6. पेजिंग ही नहीं हुई है इसमें. 114 of 2023. खालिद जावेद खान तो मौजूद नहीं है कोर्ट में. So page 6, 114. इसका सिर्फ बता दें क्या उनको कुछ पता चला या नहीं पता चला? My lord, no, sir. सीसीटीवी में भी नजर आया था. आप ये बताइए, आप इसका क्या नतीजा निकला? इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया या क्या निकला? इसका एक्टिवली परस्यू है, हॉट केस है, क्या चीज है? अगर आपको अभी नहीं पता, आप ये चीजें नोट कीजिए अटॉर्नी जनरल. My lord. और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी जाएगी. कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इसमें दी जाएगी. I want to add something. जी फरमाइए. गुज़िश्ता दिनों जो हमारे प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं, इनकी तरफ से आप एक चीज तो कर लेना, ये मसला तो हल करें ना आपका. मैं इसी पर आऊंगा. मैं इसी पर आने लगा. नहीं, आप एक मिनट, ये अगर आपको पता है किसने किया, हमें नाम बता दें, हम इनको कहेंगे उसकी तफ्तीश कर लें. माय लॉर्ड, मैं इसी पर आने लगा हूँ. आ जाइए. मैं सिर्फ ये कहने लगा हूं कि जो इनकी प्रेस रिलीज थी, आई स्टैंड बाय इट. लेकिन ये जो पिटीशन थी, आई फेल्ट आई एम ट्रैप्ड टू साइन दिस पिटीशन, सो आई एम जस्ट विथड्रॉइंग फ्रॉम दिस पिटीशन. आपने झूठा एलिगेशन लगाया है? आई एम नॉट सेइंग झूठा. नहीं, हम कह रहे हैं, सॉरी टू से, आपकी मर्जी नहीं है कि आप टहलते हुए आए और कहें कि मैं अब जा रहा हूँ, खुदा हाफिज. नहीं, सॉरी, ये बात अगर या तो बोलिए झूठा एलिगेशन था. अगर सच्चा है, हम आपके बुनियादी हकूक आपको दिला करके छोड़ेंगे. असद तूर साहब, जरा सुन लीजिए, अगर आप पे प्रेशर है इसको विड्रॉ करने का, हम नहीं अलाउ करेंगे. नो वे, आई एम नॉट. अच्छा, हम करेंगे ना. आप हमारे पास ले आए ना एक चीज, हम देखेंगे उसको. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पिटीशन जो साइन हुई मेरी, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें विड्रॉ कर रहा हूँ. अदरवाइज आई स्टैंड बाय माय एलिगेशन. आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड आई मेंशन्ड इन माय एफआईआर. हमारा काम छोड़ दीजिए, ठीक है? आप नहीं करना चाहें, आप तशरीफ रख लें, हम काम करवा, हम फिर भी बुनियादी हकूक दिलवा के छोड़ेंगे. असद साहब, इसमें कोई फर्क है? जो दोनों आप एक से विड्रॉ करते हैं, दूसरे के ऊपर दूसरा है ही नहीं ना उनका. वो तो एक ही पे आपने साइन नहीं किया, कह रहे ना. एक पे यही बात है. साइन इज, आई एम लाइक दैट टाइम कुछ और कहानी थी जो साइन हो गया था. बता दें वो भी कहानी. चलिए आप एक्सप्लेन कर. शहजाद साहब, जरा आप भी आ जाइए. You are now the president, and with the office come responsibilities. I hope you can assume some responsibilities. But I am always ready. Ji? Ready to. Now assist us if a matter of fundamental rights comes before us, and we've taken notice of it. So we want to see it to its logical conclusion. Would you have an opinion on that? Would you like to assist the court on this? Would you like to represent Mr. Asad Ali Tur? But if he wants, no, if he we are saying he's made it clear. He says I want to withdraw it. But we will ensure that anyone's fundamental rights are infringed. They may be under pressure to do so. Who knows? Well, I don't want to pass any comment on that, but it has to come to a logical conclusion. Matter has been reported to the police. People get frustrated. I have no confidence left in the police. I don't want to do it. Frustration. Leave me alone. Ab 6 dafa mere ghar aur aayenge. That's a natural process that people go through. That doesn't mean the matter should end there unless on the face of it is false. When the police has investigated the matter and has come to the conclusion, yes, that incident took place. Now the question comes, who are the perpetrators? Either the police should have said, this is a false case, it's a made-up story, we close the case. That's one thing. But they accept that incident took place. Then it should be proceeded.
So what I don't know. I mean, I don't think that you can come and withdraw things. If it's a criminal case, they should come up with something. President Sahab, we still don't know why is he withdrawing from this writ petition. Writ hai whatever. So why is he withdrawing? What I've heard, he says कि उस petition पे मेरी signature नहीं थी. He has been trapped. आप ये कह रहे हैं ना, आप क्लैरिटी कर दीजिए आके. एक मिनट रुकिए जी जरा. Why he was trapped तो and आ why जाए he ना, is वो withdrawing? बोलना क्या चाह रहे हैं. उसकी कोई इंडिविजुअल पिटीशन नहीं थी. आपकी कोई इंडिविजुअल पिटीशन है असदुर? Let me clear, my lordship. आप उसको क्लियर कर दीजिए. असल में थोड़ा कम्युनिकेशन में मसला हुआ. Yes, please, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सॉरी, मैं भी मैं पहले इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सका. माय लॉर्डशिप, जब ये पिटीशन हुई थी, मैं अंडर इम्प्रेशन था कि जो मेरे मेंटोर हैं मतीउल्लाह जान साहब, वो भी इसके सिग्नेटरी हैं. लेकिन जब, और दूसरी बात, मैंने इसलिए इस पर साइन कर दिए थे, आई हैवंट क्वेश्चनड इट. दूसरी बात, मेरा बिल्कुल ये कंसेंट नहीं था कि ये पिटीशन कोर्ट रूम में लाई जाए. मैं कभी भी नहीं चाहता था. ये आप देखें, हम आपसे सिर्फ सिंपल सी बात पूछ रहे हैं. आपके साथ जो हुआ वो सही है? आपने सच्चाई बात लिखी है गलत? बस इतनी सी बात, बस इतनी. अब आपका तरीकेकार के ये इधर लगे उधर लगे, ये तो आपका काम नहीं है. नोटिस में कोर्ट में ले लिया ना, वो तो आप सो मोटो ही हो रहा है ना. अब वो कोई ऐसी बात नहीं है. ठीक है. हाँ, नहीं ठीक है. वो ये नहीं कह रहे खड़े थे. नहीं, वो ये आज भी खड़े हुए हैं आपके साथ. वो इशू नहीं है उनका. वो आज भी आपके साथ खड़े हुए हैं और कह रहे सही है. अब वो किसके पास लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, मैं खुद मुतमईन नहीं था. तो मैं इसमें क्या आपको बड़ी बात दरअसल उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं ट्रैप हो गया. हाँ, मैं साइन करते हुए. तो ये क्यूरियोसिटी यही है कि ट्रैप कैसे हो गया. हमारा भी सवाल यही है, वही बता सकते हैं. आप बाहर पूछ लीजिएगा उनसे. हम जरा आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, ये उस्ताद ने साइन कर दिया था, तो ये उन्होंने भी कर दिया. ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन is a very important thing, and we are going to ensure that every journalist in Pakistan can freely write anything he wants to, criticize to his heart's content. That's, we want to make it absolutely clear. Article 19 guarantees that. The fact is that this matter went much more than that. It was not just censorship, it was intimidation. बना दी. और रिसेंटली जो भी क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे अभी रिसेंट पे अलग बात करते हैं, फिर ये आपके सदर इनसे सुन लेंगे क्या करते हैं. ये आप कॉम्प्रिहेंसिव हमें इस पे रिपोर्ट दीजिएगा, और ये आप जाएंगे, और अगर you will go to any agency including the ISI, और अगर आपको कोऑपरेशन नहीं मिला, आप उसकी रिपोर्ट दीजिएगा. मेरे ख्याल में वो जो इमरान शफकत और आमिर मीर साहब के साथ जो FIRs थी, उसमें क्या उनका क्या इशू है मुझे नहीं पता. ये इमरान शफकत के साथ क्या हुआ? इमरान शफकत को भी उठा लिया गया था, जिसके अंदर इमरान शफकत जो है उनको भी उस वक्त उठा लिया गया था, क्योंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके हवाले से कोई क्रिटिसिज्म क्या था. ये उनके साथ हुआ क्या था? जितनी FIR इन लोगों ने लॉन्च की है ना, जो साथियों ने जो जितनी भी FIR लॉन्च हुई है, उनका स्टेटस मालूम कर लेना कि वो 173 की रिपोर्ट के बाद उसमें FIR हुई नहीं हुई थी. उस पे फाजिल अदालत ने रिपोर्ट भी मांगी थी कि DG FIA ने कैसे किया. वो एक रिपोर्ट दाखिल हुई थी, मेरा ख्याल है उसको भी देख लेना चाहिए. ठीक है, अच्छा इनका भी नोट करें. तीसरा साथी कौन है? आमिर मीर थे. हामिद या आमिर मीर. नाउ ही इज मिनिस्टर है प्रोबेबली. हाँ जी, कम से कम वो तो अपना केस चलवा सकते हैं, वो उनसे भी नहीं चल पा रहा है. जी सर, FIA मेरे ख्याल में एक फेडरल इदारा है, वो शायद सूबे में है. कहाँ मिनिस्टर हैं? पंजाब के अंदर. अच्छा, किस चीज की मिनिस्टर है? इंफॉर्मेशन एंड कल्चर. चलिए हम उनको इन्फॉर्मेशन दिलवा दीजिए ना. और पेंडिंग FIRs कौन सी है, ताकि उनको आप नाम बताएंगे तो फिर उसके बारे में स्टेटस मालूम कर सकते हैं ना. ये उसमें मेंशन है. अच्छा, उनके साथ भी FIR क्या रजिस्टर्ड है? उसके बाद उन FIRs के साथ क्या हुआ, मेरा ख्याल है कि उस वक्त अमजद नजीर और इनका क्या बना, उन्होंने DG FIA से मुलाकात भी की थी. उनको FIA के ऑफिस में बुलाया भी गया था. वहाँ पे हमने तस्वीरें देखी थी कि चाय वाय भी सर्व की गई थी. उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया था. लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये नहीं पता. बहरहाल आमिर मीर साहब के लॉयर जो है वो यहाँ मौजूद हैं. कौन? जदून साहब जो है. अच्छा, आप हैं, बताइए जदून साहब. सर, इनकी FIR नंबर 128/2021 जो है 7 अगस्त 2021. कौन से ऑफिस में कटी है? ये साइबर क्राइम विंग लाहौर. नहीं, इनके अगेंस्ट या इनके फेवर में? सर, इनके अगेंस्ट. नहीं, इनके अगेंस्ट क्यों? मैं ये जो उनके साथ हो उसका हम कह रहे हैं. उसी के FIR से इन्होंने कटवाई थी.
He is the complainant. सर इसमें इज नॉट अ कंप्लेंट, उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ जो है सेक्शन 20 की डेफिमेशन व्हाट वी आर आस्किंग कि जिसमें आप कंप्लेनेंट एंड साफी, उन FIRs का क्या प्रोग्रेस है? वो सर FIR नहीं की उन्होंने, हम तो उन्होंने तो हमें उठा के ले गए थे, हमें मोबाइल छीन लिए थे हमसे, और वो आपके अगेंस्ट है, वो नेक्स्ट चैप्टर है कि अगेंस्ट क्या क्या है, बट व्हाट एवर दी जर्नलिस्ट आर दी कंप्लेनेंट, उसका क्या स्टेटस है ये पूछ रहे हैं। जर्नलिस्ट की कोई FIR नहीं कटी। नहीं है ना, बताइए ना इन्होंने। नहीं, इन्होंने बताई असतूर की FIR भी कटी है, इमरान शफकत भी कटी थी, लेकिन उनके खिलाफ तो FIA ने केस रजिस्टर किए थे जिस बुनियाद पर उनको अभी हम ये भी बाद में पता लगा था। अभी हम उन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं जो उन पे बीती सहाफियों पे वो FIRs की। अब हो सकता है उनके खिलाफ भी FIRs कटी हों, सच्चे झूठे केसेस, वो एक अलग बात है। वो अगर अभी हम सिर्फ तशद्दुद सहाफियों पे जो हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं, जो अभी हम दूसरे मौजू पे आएंगे, अगर कोई उठाना चाहे उसको भी उठाते हैं। उसमें एक चीज है, बिल्कुल ये तशद्दुद वाला असद तूर वाला मामला, मतियुल्लाह जान को जो अब्डक्ट कर लिया गया, FIR कटी, मतियुल्लाह जान 0, मतियुल्लाह जान को जो जी नहीं, उनका FIR का क्या बना? FIR मतियुल्लाह जान की पता नहीं है, लेकिन वो सर वो केस पेंडिंग पड़ा ही सुप्रीम कोर्ट ही में पेंडिंग पड़ा। वो यहाँ हैं, बैठिए सर, पूछ ही लेते हैं उन्हीं से, खुद ही बता देंगे उनके FIR का क्या बना। आपकी FIR का क्या नंबर है जो आपने कटवाई? आपकी FIR का नंबर क्या है? थैंक यू मैडम। नंबर FIR का आपका? एक्चुअली जो FIR थी वो मेरे भाई की तरफ से थी, और नंबर क्या है? किडनैपिंग के हवाले से, और वो केस नंबर उसका मुझे अभी नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सो मोटो नहीं, केस तो अलग है ना जी जी, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का बना किया, केस क्लोज कर दिया है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, JIT की भी बनी थी, एक मीटिंग हुई, 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन रिपोर्ट फाइल हुई हुई है और पेंडिंग है, और उसके ऊपर कोई आप FIR नंबर दे दीजिए अटॉर्नी जनरल को, इसलिए कि FIR नंबर से ये आपको, ये तो ऐसे लोग हैं उनको 1 मिनट में पता चल जाएगा क्या FIR नंबर। ये इस्लामाबाद थाने में काटी है जी। कौन सा थाना था? कोसार। तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई उसमें। एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी नहीं, ये अपारा का थाना था, G6 का ये इंसिडेंट था, जुलाई 21। थाना कौन सा था? थाना अपारा, पुलिस स्टेशन अपारा। ठीक, उस पे कुछ नहीं हुआ, उस पे कोई उसके बाद एक टीम बनी थी इन्वेस्टिगेशन की, हमने वो याद नहीं, वो JIT किसने बनवाई थी आपकी? JIT किसके ऑर्डर पे बनी थी? JIT सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बनी, और उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस, उसकी रिपोर्ट नहीं आई JIT, दोबारा वो केस भी नहीं लगा कभी। इमरान साहब, सॉरी अटॉर्नी जनरल साहब, कीप द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग सेपरेट। We want to know the cases that incidents which resulted in FIRs registered by journalists or on their behalf, and even those cases where no FIR was registered, that they went to the police station. So far 4 names have come before us: Mr. Asad Ali II, Mr. Imran Shafkat, Mr. Amir Mir, Mr. Matiullah Jan. And we do, if a wishy-washy report comes, क्या क्या कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट भी मंगवानी चाहिए। कौन सी? फेडरल गवर्नमेंट से मंगवाई जाए वो रिपोर्ट भी, कि जर्नलिस्ट में के साथ पिछले 5-7 साल के अंदर। वो एक अलग बात है ना, इसके स्पेसिफिक इंस्टेंसेस तो पता है ना, ये जो सामने FIR, देखिए उसका फिर एक फायदा मिलता है, एक केस कर लें उसका बहुत पॉजिटिव फायदा दूसरे केसेस में भी पड़ जाता है। तो कम से कम ये तो हमें पता है, टेंजिबल केसेस जो हैं, जो असल केसेस जो हमारे सामने आ गए हैं, या तो पुलिस के ये सारे झूठे केसेस में, तो एक अलग बात है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अगर कोई विशी वॉशी टाइप की आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी, तो हेड ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट शुड बी हियर, माय लॉर्ड, नो लेस देन द IG, नो लेस देन द डायरेक्टर जनरल FIA। ये आपको बुलाया था JIT में मतियुल्लाह साहब? एंड इफ इट रिक्वायर्स इंक्वायरी to go from to any intelligence agency, they will go there without any restriction. ठीक है, and they will make any inquiries they want to. The investigation officer, whoever the investigation officer is. ठीक है, let all your departments have one job only: to serve the people of Pakistan. It's not but come and occupy a position and serve the present government or the future government or so let's see how effective you are, and this we want very soon.
जी फरमाइए. With your permission, जी फरमाइए. there is another very important investigation pending with the government of Pakistan with regard to a very prominent journalist, that is Arshad Sharif. And I think उसके ऊपर भी कोई progress जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में आता है फिर पुलिस उस पे इन्वेस्टिगेशन छोड़ देती है. That's very important. ये वही केस है जो कई दफा कोर्टों में लगा है. Exactly. उसका हम ये अब आई डोंट नो उसमें क्या ऑर्डर्स हुए हैं. आपने निशानदेही की, अच्छी बात है. मैं जरा फाइल तो देख लूं, हम लोग देख लेंगे क्या तक हुआ है क्या नहीं हुआ है उसमें. उसका जरा सा थोड़ा सा फर्क ये है, एक होता है क्राइम कमिटेड इन योर टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, एक होता है क्राइम कमिटेड अब्रॉड. तो अभी तो हम इस केस में तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, मालूम करेंगे. अगर आप मैं कोई ऐसा हम लोग इसमें ऑर्डर कर दें जो उसके बरक्स ना हो जाए. नहीं, योर लॉर्डशिप के तो हो सकता है अगली तारीख को उसको हम साथ लगाते हैं. हम जरा देख उसको फाइल, मैंने क्योंकि मैं कभी बेंच पे बैठा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है उसमें. रजिस्ट्रार ऑफिस से मालूम कर लेंगे. अच्छा, ये जरा एक एक लॉजिकली चलते हैं. एक तो ये बात हो गई, आपकी पुरानी बातें हैं. और कोई बात? अच्छा, अटॉर्नी जनरल, the other main allegation is that the journalists are not allowed to freely do their work. इस पे आप कुछ फरमाना चाहते हैं? जी सर, आज भी सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी ही है. परसों हफ्ते के रोज तकरीबन 47 के करीब एक लिस्ट हमारे सामने आई थी जिसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे. कल इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बताया गया कि 22 जर्नलिस्ट को जो है वो नोटिस सर्व किए गए हैं. अब एक तो हमारे पास वो लिस्ट नहीं है, लेकिन जो नाम हमारे पास हैं उनके हवाले से हमने एक रेजोल्यूशन भी पास की है. कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका भी नोटिस ले. आज भी कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनको नोटिस सर्व किए गए हैं. तो उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट है कि अदालत उसको भी. आप कोई सीएमए नहीं फाइल कर सकते एसएमसी के साथ ही जिसमें सारी डिटेल्स हो? अर्जेंटली फाइल कर दीजिए. एक्चुअली सर ये अच्छा, हम इनको ये बात कर सकते हैं. देखिए अटॉर्नी जनरल, जो जहां तक तनकीद करे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप मेरा फायदा कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का फायदा कर रहे हैं तनकीद रोकने से, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं. मैं इसलिए खिलाफ हूं, एक तो आइन ये वाजे कर दिया आइन ने कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन. और दूसरी बात, आप मेरा नुकसान कर रहे हैं. नुकसान किस तरह से? अगर खामियां आप तनकीद के जरिए उजागर नहीं करेंगे तो मैं अपनी इस्लाह कैसे करूंगा? तो इसमें तनकीद में इस्लाह का उनसर भी होता है. ठीक है, अब गाली गलौच एक अलग बात है, मगर तनकीद की बात कर रहा हूं. अगर किसी एफआई ने काम किया तनकीद की बिना पे कि आपने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की तनकीद करें, बेशक करें, ये फैसला गलत है, ये आइन के बरक से, ये कानून के बरक से, इसमें ये नुक्स हैं, जो मर्जी करें. वो कंटेम में भी नहीं आता ना. वो अगर आप कोई किसी आप अगर आपने किसी सहाफी को पकड़ा इसलिए कि उसने तनकीद की है, अगर वो कुछ और करे, इंसाइटमेंट टू वायलेंस या कुछ और, या देखें, अब ये मैं तो ये भी कहूंगा कि आप मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं है जाती तौर पे, मगर अब आइन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप जुडिशरी का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए कि उनकी कॉन्फिडेंस लोगों की गिर जाएगी जुडिशरी में. अगर आप ये वो जरा एक लाइन आ जाती बीच में. मगर जहां तक तनकीद की बात कर रहे हैं, खूब तनकीद करने दें, इस पे कोई पर्चा नहीं दर्ज होगा. और अगर इसलिए नोटिस दी गई है तनकीद की बिना पे, तो सहाफियों की बात कर रहा हूं, वो फौरन वापस ली जाए. या किसी ने भी तनकीद की हो, मैं तो कहूँ सहाफी नहीं, आम शहरी भी तनकीद कर सकता है, उसको उतना ही इख्तियार है. सहाफियों को जरूरी नहीं कि वो खास उनके ये हैं, मगर एक आम शहरी भी तनकीद कर सकता है. फैसले पे आर्टिकल लिखे हैं हमारे, लिखे मुझे आर्टिकल 19 में सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ, हमारे डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये चीजें as far as fair comment or criticism of judgments is concerned, हम आपकी अंडरटेकिंग रिकॉर्ड करेंगे या आप हुक्म देंगे, कौन सा बेहतर समझते हैं? My lord can record my undertaking.
My lord, as far as fair comment or criticism is concerned, फेयर भी निकाल दीजिए, क्रिटिसिज्म भी आपको अनफेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट मैं आगे भी जाता हूँ, अनफेयर क्रिटिसिज्म भी बट टेम्परेट लैंग्वेज तो होना तो कंटेम्प्टी लैंग्वेज में नहीं, वो अगर गाली गलौज पे होता रहे मैं उसका बताता हूँ, उस पर मुझे उस पर भी असर नहीं है, मगर एक इंस्टीट्यूशन के हेड की मुझे जरा सा फिर देखना होता है कि भाई ये आर्टिकल 19 मेरे लिए नहीं बना, ये अवाम के लिए बना गया है, तो हर चीज में अब तवाज़ुन है। फॉर इंस्टेंस फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये भी बता दे कि किसके कहने पे जीआईटी बनाई गई थी और किसके कहने पे ये सारे नोटिस किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मलाइन की जा रही हैं। आर्टिकल 14 के साथ पढ़े ना, you wanted to say दोनों something, चीजों को मिला के पढ़े आप। नहीं सदर साहब से जरा सर एक आप कुछ कहने वाले थे। This is exactly what the Supreme Court bar maintains, that criticism on the judgment and a comment on the judgment of this August court is welcome, because that guides everyone. I welcome it. So everyone welcomes that. But if concocted stories are made up against our honorable judges, that is a question that worries us as the Bar Association, because all kinds of stories were floated on the basis of various judgments rendered by this court. That is, we have always been very critical of that. उसकी वजह ये देखिए जी सदर साहब, क्योंकि जो पेमरा है ना, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर दी जो सैटेलाइट टेलीविजन्स एंड केबल टीवी ऑपरेटर्स। अब ये जो YouTube का जो चैनल है ना, इसका अपना कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय PTA, या ये कोई सेल्फ इम्पोज खुद बना लें। जिस तरह PBA बनी थी जब नए नए चैनल आने शुरू हुए थे, तो एक मौक़िफ़ ये था कि आप सेल्फ इम्पोज कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना लेंगे आपने सारे टीवी चैनल मिलके। तो इसमें ये इशू आ रहा है ना, क्योंकि आर्टिकल 19 भी है, डिफेमेशन का लॉ भी है 499, 500, डिफेमेशन ऑर्डिनेंस भी 2002 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ का भी लॉ अपनी जगह मौजूद है। तो कभी भी जो फेयर क्रिटिसिज्म, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने फेयर भी हटा दिया, क्रिटिसिज्म ही रहने दिया, तो वो टेम्परेट लैंग्वेज होती थी। कभी भी कोई जजमेंट क्यों, अच्छा पब्लिक प्रॉपर्टी, यू कैन डिस्कस द जजमेंट, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, मगर वो एक लैंग्वेज का जो एक होता है ना ताल्लुक, वो जरा सा इसके अंदर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जुडिशरी को ये महसूस होता है। सर एक आप जरा आइन जरा उसकी एक्सेप्शन जरा पढ़ लेते हैं, आइन दीजिए। सॉरी, वी हैव टेकन यू बाय सरप्राइज। आइन दीजिए इनको, आर्टिकल 19। Received a notice in the morning. अच्छा, you are a party? No, my lord. I have just received a notice by this August court that I am required in this case. I am here. But why you given notice? Sir, there's a notice issued by the office. मैं कुछ फैक्ट्स बता सकता हूँ जी। वो ये कि 5 मिनट पे बेंच के सामने जब ये लगा तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि किसकी कौन इनको नोटिस गया था, तो पाकिस्तान बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार दोनों को गया था। अच्छा ठीक है, अब जरा आर्टिकल 19 के एक्सेप्शंस पढ़ने। सर एक बात मैं अगर कोर्ट अलाउ करे सर करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनरल एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट, सर हमारा जो मुकदमा है वो सिर्फ जो सहाफ़ी हैं उनकी हद तक है, बाकी कुछ सियासी वर्कर्स भी हैं, कुछ आम इंडिविजुअल्स भी हैं, उनकी हद तक हम केस प्लीड कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते। हम सिर्फ अपने जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनकी हद तक हम जाना चाहते हैं। सर अब आपने थोड़ी तफरीक कर ली सर, हम आपको भी आपके बुनियादी हकूक दिलवाएंगे, और वो लोग जो हमारे सामने नहीं है, जो शायद जर्नलिस्ट ना भी, उनको भी, जहां तक तनकीद की बात है, दिल खोल के तनकीद करें। उसमें हमारी भी शायद इस कुछ पहलू निकालने, जो पहले मैं तो कम से कम ये कह सकता हूँ मैं गलतियां जरूर करता हूँ और शायद करता जाऊंगा। मेरा वो रुतबा नहीं कि मैं गलती से बालातर हूँ, मगर तनकीदी से इस्लाह होगी। सर लेकिन तनकीद की बात नहीं है सर, कुछ गाली में और खबर में वो तो आपसे कह रहे हैं ना, वो हम तनकीद सही बात है ना, डिसेंसी एंड मॉरलिटी एंड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ। देखिए डिग्निटी ऑफ मैन भी तो इनवायलेबल है ना आर्टिकल 14 में, इंसान की इज्जत, और फिर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों को मिला के आप करेंगे ना सर। किसी की भी आप बेइज्जती करें, कोई भी हो, कोई भी एक इंडिविजुअल हो, कोई पब्लिक फिगर हो, कोई, उसको उस तरीके से लिखना, क्योंकि उसकी भी फंडामेंटल राइट है। डिग्निटी ऑफ मैन इज इनवायलेबल सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ। सहाफी ये दोनों चीजें हैं, बैलेंस, दोनों का बैलेंस। जर्नलिस्ट है सर, जर्नलिस्ट अगर गलत खबर भी दे, वो किसी ना किसी तरह वाकयात को, चीजों को नरेट करता है। चलो गलत खबर की लैंग्वेज अगर
अगर बुरी नहीं हुई तो सिर्फ गलत खबर है, उसका वो कल देखिए आप उसकी फिर जिम्मेदारी है, जब उसको पता चला हो सकता है कि उसने 2-4 लोग उनसे पूछा, उसने खबर लगा दी, फिर उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि जी मुझसे खबर गलत लगी थी, तरदीद करना, ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है, वो ना करे वो अलग बात है। और ये प्रिंट मीडिया में सालों से होता आ रहा है। वो बात वही आ जाती है, आप प्रिंट मीडिया में भी रहे, प्रिंट मीडिया बात सुनिए, प्रिंट मीडिया में भी रहे आप, प्रिंट मीडिया के यहाँ इतने जर्नलिस्ट बैठे हैं, सुन तो लीजिए, तो वो यही होता है ना कि कोई तरदीद आ जाती है ना दूसरे दिन के, भाई हम माफी चाहते हैं, गलत खबर छप गई है, हम आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, ये खबर गलत थी, ठीक है। एक डिफेमेशन ऑर्डिनेंस में है कि आप किसी का मौक़िफ़ पहले ले ले उससे, कि अगर आपको इंटरव्यू कर रहे हैं कि जी हमने तो उनको कहा था कि अपना मौक़िफ़ दें, वो नहीं दे रहे, 2। तीसरा, उसमें भी एक डिफेंस के अंदर आता है कि हमने जो है ना विद सेम प्रोमिनेंस हमने तरदीद कर दी है, तो वो एक डिफेमेशन का जो लॉ है ना, उसमें रिटन स्टेटमेंट में बहुत बड़ी प्ली होती है कि विद द सेम प्रोमिनेंस वी हैव इशूड द क्लैरिफिकेशन, कॉन्ट्रडिक्शन, अपॉलॉजी, जो भी है। तो प्रिंट मीडिया का तो ये मयार था जो अभी भी है। सर वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर हम आपकी बात सुन ली ना, अगर हम कह रहे हैं ना कि ये आपका भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो लोग हमारे सामने नहीं हैं उनके भी हम अटॉर्नी जनरल ने कहा हम अंडरटेकिंग देते हैं कि तनकीद पे कोई ममानियत नहीं है, बल्कि जहाँ तक मैं अपनी जात की बात कर सकता हूँ मैं तो उसको वेलकम करता हूँ, क्योंकि शायद मुझसे वाकई गलती हो, मैं अगली दफा नहीं करूंगा वो गलती। सर गालियों की बात आ गई, उसकी तो हम भी मजम्मत करते हैं, झूठे इल्जामात की हम भी मजम्मत करते हैं, मगर आपकी मजम्मत की बात नहीं है, हम आइन पे चल रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो तनकीद है उसकी हिमायत करते हैं, जो सेहतमंद तनकीद होती है, और इसमें हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो खालिस्तन जिन्होंने सिर्फ फैसले को लीगली मैं आप पे तनकीद कर सकता हूँ, उनको भी नोटिस कर दिया गया। मुझे इजाजत है तनकीद करने की। देखिए कयूम साहब, इससे हमारे मुल्क की बहुत इज्जत खत्म हो गई है, मेरा ये ख्याल है। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा डैमेज किया इंस्टीट्यूशंस को, और अपनी जाती राय में कानून को वो नहीं देखते, कानून क्या कहता है उनकी जाती राय ये होती है। तो मीडिया का भी तो कोई फर्ज बनता है, हमारा जो मीडिया है, कि वो उसको अंडू करने के लिए कुछ रियलिटीज पे मबनी कोई स्टेटमेंट्स लेकर आए सामने, कुछ फैक्ट्स लेकर आए सामने। बीच में पार्टी बन जाना ये बहुत अजीब सा है, और तज़हीक जो है ये बड़ी अजीब। तनकीद आप जरूर करें, लेकिन आर्टिकल 14 का भी तो ख्याल रखें, 19 का ख्याल रखते तो 14 का भी ख्याल रखें। तो आपकी वो तज़हीक जो है तो वो पूरे मुल्क की बदनामी का बात। सोशल मीडिया पे बोट्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, हमने किसी और मुल्क के बारे में इतना नहीं सुना जितना अपने मुल्क। कितनी अच्छाई है वो दबी है। थंबनेल के ऊपर जो होता है ना वो इतना डैमेजिंग होता है कि अंदर कुछ नहीं होता उसके, वो अंदर नहीं बोलते वो बात। इस मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, वो तो किसी ने उठाई नहीं। अरे एक चीज मैं मालूम करना चाहता हूँ, अब जैसे जज ने मिसकॉन्डक्ट किया तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, जर्नलिस्ट के लिए क्या है? सर जहाँ तक जियो टेलीविजन ये सदर साहब से पूछ रहे हैं, डेफेमेशन हो सकती है सर? नहीं वो तो हर के लिए, कोई जर्नलिस्ट का कोई अपना मैकेनिज्म है इन हाउस जिसको कहते हैं डेफेमेशन के केसेस कभी पाकिस्तान में कामयाबी नहीं, वाकया कोर्ट नहीं करता, लेकिन नहीं कोई है, कोई मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, अगर वैसे प्रॉपरली तो कुछ नहीं है, नहीं नहीं उनका देखिए कोड ऑफ कंडक्ट है, सुने ना मैं बताता हूँ, वो CPNE का बना हुआ है, काउंसिल फॉर न्यूज़पेपर सोसाइटी का बना हुआ है, APNS तो खैर वो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक है, PBA का है, जियो टेलीविजन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, जियो का तो खुद बनाया गया था, वो इनको पता है तो शुरू में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो है इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था जियो का, ठीक है ना। और बाकी आपका पैमरा के अंदर भी काफी डिटेल्ड है जी, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है बट सोशल मीडिया नहीं। सोशल मीडिया इज नॉट कवर्ड अंडर दी PM पैमरा, और पाकिस्तान टेलीविजन तो उनका अपना स्टेट ओन टेलीविजन है, वो पैमरा में भी नहीं आता, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ बातें कायदे-ए-आज़म की जरा सुन लेते हैं, वो जरा कायदे-ए-आज़म को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। नहीं जरा वो देखिए, एक फैसला था ये इनको दें PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट, ये धरना वाला केस
यूट्यूब जितने हैं उनकी एसोसिएशन है या आपके साथ शामिल हैं? सर हम यूट्यूबर्स को सिर्फ उस हद तक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो रेगुलर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, यहाँ कोर्ट प्रोसीडिंग कवर करते हैं, उनकी हद तक हम जा रहे हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ बाहर बैठे हुए हैं। अगर आपके जो यूट्यूबर्स यहाँ पे हैं उनकी अगर कोई सेपरेट एसोसिएशन नहीं है, अगर वो आपके ही मेंबर हैं तो आपने एक फॉर्म की थी, उसका आप इसको बड़ा कीजिए फिर अपने आर्टिकल मेमोरेंडम में, उसमें यूट्यूब, क्योंकि आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अलग अलग एसोसिएशन है ना, बहरहाल है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा ही ना, सोशल मीडिया भी। अगर आपकी कोई मेंबरशिप एक्सटेंड हो सकती है या ये सब तैयार हैं तो वो आपको लेना चाहिए ताकि इनका भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो और थोड़ा सा आपका भी एक अपना सेल्फ मैकेनिज्म बन जाए ना। सेल्फ मैकेनिज्म जरूरी है इसमें। सर इस तरह है कि इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, चाहे वो प्रिंट से हो या इलेक्ट्रॉनिक से हो, वो किसी ना किसी हद तक जब अपने इदारों में खबर देते हैं तो वो देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। जो साफी है उसका ताल्लुक ना किसी इदारे से नहीं है, फर्ज कीजिए वो सेल्फ उसका है, फ्रीलांस उसका अपना कोई यूट्यूब चैनल है, मगर वो कवरेज करते हैं अच्छी। लेकिन सर जब कोई सहाफी जो है वो यूट्यूब के ऊपर खबर देता है या ट्वीट करता है ना, तो उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पर्सनल जात की हद तक होती है, उसके ऊपर कोई कानून कोई रूल्स उसके ऊपर लागू नहीं होते। अगर कोई अखबार में खबर देता है या टीवी में खबर देता है तो उसको 4 दफा पड़ता है। अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी और होती है, वो जरूरी नहीं है कि जो यूट्यूब पे आप कह रहे हैं वो आपको अखबार में अलाउ करें, वो तो एक अलग पॉलिसी, उनकी हर एक अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है अपनी। सर मकसद कहने का सिर्फ ये है कि यूट्यूब पे जो कहा जाता है उसकी जिम्मेदारी हम उठाने को तैयार नहीं है फिलहाल। उसकी ये जरा सा हम कानून की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए ये जजमेंट आया था 2019 का, ठीक है, इसका पैराग्राफ 34 जरा देख लें, पेज 344 पे है। ये चीजें पहले भी निशानदेही हो चुकी है इनकी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, प्रेस एंड पैमरा 34. The freedom of speech and expression and of the press are fundamental rights. However, these rights cannot be used to denigrate or undermine the glory of Islam or the integrity, security, or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with our foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or commission of or incitement to an offense. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आइन कह रहा है। जी हम आगे पढ़ते हैं। The Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the PEMRA Ordinance, mirrors the aforesaid restrictions as set out in the aforesaid Article 19 of the Constitution and further prohibits broadcasts which are likely to create hatred among the people or is prejudicial to the maintenance of law and order or is likely to disturb public peace and tranquility. The licenses which PEMRA issues further stipulate that broadcasts cannot be made which encourage violence, terrorism, racial, ethnic or religious discrimination, sectarianism, extremism, militancy, hatred. अब आप जरा बराए करम 37 पे आ जाइए। In compliance with our order, the Pakistan Telecommunication Authority, through the Deputy Attorney General for Pakistan, submitted a report which pointed out that under the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the preparation and dissemination of hate speech and terrorism through electronic means is a serious offense. Sections 11 and 12 of this act respectively state: 11. Hate speech. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that advances or is likely to advance interfaith, sectarian or racial hatred shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. 12. Recruitment, funding and planning of terrorism. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that invites or motivates to fund or recruit people for terrorism or plans for terrorism shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine of both. The hate which was spread and the violence which was incited through electronic means appears not to have been investigated, let alone the violators prosecuted and punished. If serious violations of the law are ignored, then the law loses respect and efficacy. अब आप जरा आ जाइए, कायदे आज़म ने क्या फरमाया था पैराग्राफ 41 में, ये कोटेशन पढ़ लें जी। और ये कोटेशन है जी, this is from my lord, his speech. इस रिपोर्टेड रेफरेंस दिया हुआ है, आप कोटेशन, स्टेटमेंट्स, राइटिंग्स, लेटर्स, मोहम्मद हनीफ शाहिद जी। 41. Freedom of speech, expression and the press are guaranteed. ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? Paragraph 41 sir. हाँ अच्छा, ओके। Go to the quotation. नहीं कोटेशन पढ़ लें। Quotation. कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना wanted journalists to be responsible, independent and fearless and welcomed criticism. He said,
quote, "The power of the press is great, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a great trust, and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to be completely fearless. If I go wrong or if the League goes wrong in any direction of its policy or program, I want you to criticize it honestly." Do you have any objection if we use this as for ourselves? We will certainly support that. The honestly is the word, the key word here. The reporting must be honest. My Lord, but there is one other issue which is coming to the forefront is, actually this free speech gets tied up with a lot of other things. For instance, मैं आपको 2 चीज बुनियादी बातें बता दूं जो कहीं दुनिया में नहीं होती है सिवाय पाकिस्तान के। वो खवातीन जाती हैं पोलियो ड्रॉप्स देने, उनको मार दिया जाता है, ठीक है। जरनवाला में आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसके पूरी बस्ती को जला दिया जाता है, ठीक है। वो सगुंदा का केस है कि पब्लिक स्कूल वाला केस निकालिए, वो खवातीन अगर तालीम हासिल करने जा रही हैं तो उनको तशद्दुद, स्कूलों पे बम, ठीक है। ये एकदम चीजें नहीं होती हैं, ये चीजें होती हैं जब आप ये सोच आती है। इसके खिलाफ तो आप लोग कुछ नहीं करते हैं। अभी मैंने परसों का अखबार पढ़ा या कल का अखबार पढ़ा कि फला किसी जगह फतवा किसी ने दे दिया कि खवातीन वोट नहीं डाल सकती हैं। उन साहब को तो आपने नहीं पकड़ा, वो फ्री स्पीच के जुमरे में नहीं आएगा, वो आपके कानून उसको को रोका जा रहा है। जो लोग ये कहते हैं पोलियो ड्रॉप्स नहीं दे, उनको भी पकड़े। कहीं मुझे कोई दुनिया में बता दें, कोई महज़ब मुआशरा, कोई जाहिल मुआशरे का बता दें, और ये फिर हमें इस्लाम का दर्स देते हैं। और आर्टिकल 19 कहता है ग्लोरी ऑफ इस्लाम। इनसे बदतर और मनफी सोच हो नहीं सकती है। जरनवाला में आपके सामने हुआ है, क्या हुआ? नफरत, कब्रिस्तानों को नहीं छोड़ते हैं, कोई भी मजहब दीन उसकी मर्जी है क्या करे, कब्रों को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको इन लोगों को किसी न किसी वक्त किसी न किसी ने इस्तेमाल किया है और अब ये अशदहे बन गए। और हम लोग छोड़ो तो आगे बढ़ते हैं। अपनी गलती इतराफ करें, आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप गलती भी नहीं इतराफ करेंगे, सजा जजा की बात तो दूर की बात है, गलती तो इतराफ करें, बस इतनी बात तो आगे बढ़ाएं। कोई अखबार में क्यों ये खबर आई कि ये किसी ने फतवा दे दिया औरतों के खिलाफ, उस आदमी को क्यों नहीं जाके उठाया आपने? क्यों नहीं पर्चा दर्ज करवाया कि वो लोगों के इलेक्शन राइट्स को पामाल कर रहा है? जो मर्जी जो आदमी खड़ा होकर तकरीर कर दे, उसको आप फतवा कह भी कैसे सकते हैं? ये इस्लाम के किसी असूल के मुताबिक ये फतवा नहीं है। पता नहीं तशद्दुद, जुल्म, जबर, इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे, और ये सब होता है हेट स्पीच से। हेट का क्या उर्दू में? नफरत आमेज तकरीर। My Lord, with your permission, my Lord, with your permission, बोझ और पता नहीं क्या। My Lord, with your permission, जी there was a question raised about regulation of media. I think हम नहीं जा रहे हैं उसमें। नहीं सर, एक सेकंड, मैं जरा आपको वादे कर दूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा था कि कोई है आपकी अपनी तंजीम? जी, उसी के बारे में सर, let me explain sir. We do have forums. We have statutory forums, we have self-regulatory forums. फोरम कौन सा है? नाम बताइए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पैमरा है सर। नहीं, पैमरा में तो नहीं। उसके बाद पैमरा तो इलेक्ट्रॉनिक। सर, let me explain sir. Media all over the world is self-regulated. जी, ये तो बात मैंने आपसे and the laws are there, and those laws include defamation laws, contempt of court laws, and all other laws that regulate conduct of जब कोई चीज ना हो तो लंबी बात, आप कोई चीज बताइए ना, हम नोट कर रहे हैं। सर, इस मीडिया के अंदर खुद गवर्नमेंट के भी स्टेक्स हैं।
Why would they regulate us? आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, आप अगर ये सजेस्ट कर रहे हैं तो आप रेगुलेट फरमाइए कैसे आप खुद कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई रेगुलेट करना चाहे वो आप फरमाइए ना। कोई उसमें आपको किन की मदद चाहिए, अटॉर्नी जनरल, गवर्नमेंट, आपके अपने इदारों की, कि कोई सेल्फ रेगुलेटेड आपका अपना हो, सेल्फ इम्पोज। आपसे पूछ रहे थे, एक सेकंड, आप प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं, ठीक है, किसी ने खबर दी, आज केस डिसमिस हो गया, सब गलत खबर है, अलाउ हो गया, तो आपके पास कोई कंप्लेंट कर सकता है, आपकी कोई कंप्लेंट सेल है कि ये खबर गलत है, या आप खुद उसकी तरदीद कर दें ये खबर गलत है? मैंने आज तक देखा नहीं है, हो सकता है मगर मुझे नहीं पता। अब जहां तक डेफेमेशन की बात है, ये आपने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड। अब ये बात आप जाके करें इंग्लिस्तान में, उसको खौफ जेल का नहीं होता, उसको खौफ होता है कि उस पे जो पेनल्टी लगेगी, डैमेजेस जो लगेंगे, वो उसको तो उड़ा ही देगी। बहुत होता है वो आपको वो तस्दीक ये सच है झूठ है। यहाँ हमारा डिफेमेशन का आप कर दें सूट, 50 साल निकाल लेंगे आप आराम से, अगर आपने इतनी जिंदगी में उसका फैसला भी देख लिया। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल सही है, डेफिनेशन है। जहाँ तक कंटेम्प्ट की बात है, मैं कंटेम्प्ट से पढ़ा, वो एक्स चीफ जस्टिस है, उनका डेफिनेशन का केस 14 साल से छोड़े। सर इसमें मीडिया का कसूर तो नहीं, सर लॉज को इम्प्लीमेंट। अच्छा सर, यही बात हम जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। देखिए हम ये हमारा काम नहीं है कि अब क्योंकि उनकी पिटीशन में ये बात की गई है, हैदर वहीद साहब की, वो चाहते हैं ये, उस पे हम बाद में आएंगे, मगर मैं सिर्फ मालूमात कर रहा था कि कोई ऐसा आपका इदारा है, कोई आपको कोई कंप्लेंट कर सकता है कि जी ये गलत है या नहीं आपके यहाँ? सर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। नहीं, आपके यहाँ कोई इदारा है? होता क्या सर, आप प्रैक्टिकली छोड़ दीजिए, कोई आपने इदारा बनाया हुआ है? पैमरा है और जिस इदारे की खबर होती है वही इदारा उस खबर की तरदीद करता है। आपके यहाँ प्रेस एसोसिएशन का कोई इदारा है? सहाफती तंजीमें नहीं करती। इसमें भी थोड़ा फर्क है। आप फर्ज कीजिए किसी अखबार में या किसी टीवी चैनल पे हैं, वो आप वहां बैठ के जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी में आता है। आप बाहर आके अपना कोई यूट्यूब का प्रोग्राम करते हो, उसकी कोई एरर हो तो यूर इदारा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो उसके लिए नहीं बोलेंगे, वो इंटरनली आपको वो जिसने गलत दिया सर उसका फर्ज बनता है कि उसकी तरदीद करे, यही तो बात है, उस पे माजरत करे, उसका फर्ज बनता है। लेकिन सर एक चीज होती है जो कोर्ट की नोटिस में लाना चाहता हूँ। मसला जनरली जब हम सहाफी बैठते हैं और कहते हैं कि यार फलां शख्स ने फलां खबर गलत दी, खबर डिस्कस होती है, तो उस खबर के ऊपर सर हम उसको जब कोई सहाफी हमें मुलाकात हो जाए या वैसे हो जाए, हम उसको कंडेम करते हैं कि भाई आपने ये खबर गलत दी है। आप पब्लिकली नहीं करना चाहते हो? नहीं, लेकिन सर पब्लिकली नहीं करना। मैं दूसरे की जो बात मैकेनिज्म की है, वो जो चीफ जस्टिस साहब आपसे पूछेंगे मैकेनिज्म है कोई इस तरह का सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेटेड? वी आर नॉट आस्किंग अबाउट एनी रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। हम ये भी नहीं कह रहे कि वो जज उसका मेंबर बन जाए। सर इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है, कोई हो एक आपका सेल्फ रेगुलेटिंग जो कोई चीज आप बना सकते हैं। नहीं सर, यही बात थी कि हमें डिफरेंशिएट करना है। अ जर्नलिस्ट हु इज वर्किंग फॉर एन इंस्टीट्यूशन, और एक शख्स खुद से उठ के यूट्यूब बना लेता है, जो इदारे के लिए काम कर रहा है उसके लिए तो आप 100 जगह काम कर सकते हैं। आप कुछ नहीं, उसका ब्यूरो चीफ जो होता है, जो यहाँ पर हेड होता है, अफजल साहब, बात को लंबी ना करें, बात तो हो गई ना, वो बात मुख्तसर सी बात है, मुख्तसर सी बात है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया क्या हो रहा है, हम आपको बिल्कुल जिम्मेदार ठहरा ही नहीं रहे। हम ये सिर्फ एक सवाल पूछा था, आखिर आप एक प्रेस सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन एक इदारा है, अगर आपके किसी मेंबर ने गलत खबर चलाई, या दो बातें, या आप खुद उसकी वो कर दें कि ये गलत खबर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ कोई अगर दरखास्त दे दे कि ये तो आपने जो खबर दी थी गलत है, तो सिर्फ पूछ रहे हैं आपके यहाँ कोई ऐसा आपने पूरा एसोसिएशन या उसकी कोई कमेटी बनाई हुई है अपने तौर पे इस बात को देखने के लिए या नहीं? सर अभी तक नहीं है। बस 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 कुछ और नहीं पूछ रहे हैं आपसे। आप करना चाहें या ना करना चाहें ये भी हम नहीं कहेंगे आपको, शायद बेहतर होगी, मैं आप जैसे मशवरा ही समझ। सर ऑनरेबल जज ने एक बात और की यूट्यूबर्स के हवाले से कि हम उनको शामिल करें। 2 दफा वो आपके मेंबर्स नहीं है ना, वो क्या करेंगे? वो आप करना चाहे देखें, वो तो आपको अपना आर्टिकल मेमोरेंडम को एक्सटेंड करना होता है ना, आपके अपने बायलॉज है, उसमें आप वो आपकी बात मानेंगे भी नहीं, वो कहेंगे क्या कर लें, आप करना चाहें। यही बात है सर, 2 दफा हमारी जनरल बॉडी में ये मामला गया है, हम सिर्फ आपके मेंबरान किया जाए, लेकिन सर वो जनरल बॉडी में यही बात आती है कि किसी यूट्यूबर्स को हम किस तरह फोर्स करेंगे। तो बिल्कुल आपसे आपका जिम्मेदारी नहीं, हम कब कह रहे हैं, आप क्यों अपने सर ने बात की थी? मैंने तो अपनी बात पे कायम हो गया, आपको बढ़ाना चाहिए अपना स्कोप जो है। सर वो 2 दफा रिजेक्ट हो गया। ऐसा है कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे बहुत सारे लोगों ने
उन्होंने काम करना छोड़ दिया, उनका जरिया माश बन गया है कि वो दूसरों को गाली दें यूट्यूब खोल के और उससे पैसा कमाएं। वो मुल्क की इज्जत के साथ क्या होता है उनको कोई परवाह नहीं है। ये बड़े दुख की बात है, ये बहुत तकलीफ देती है इंसान को, खासतौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत महसूस होती है। ये जरा इनको दें जजमेंट शहजाद शौकत साहब को, PLD 2022 SCMR 189। May I read, my lord? ये आप जरा पैराग्राफ 11 पढ़ने इसका। There were over 1,000 attacks on educational institutions in Pakistan. जरा ये आप माइक पे करें। और There were over 1,000 attacks on educational institutions in Pakistan between 1970 and 2019, recorded by the Global Terrorism Database. The highest number of attacks on educational institutions in the world. रुक जाइए यहाँ, दोबारा इसको पढ़िए। The highest number of attacks on educational institutions in the world. In the world. आगे पढ़ते हैं। Unfortunately, neither the National Counter-Terrorism Authority (NACTA), the Ministry of Interior, nor the Ministry of Defense of the government or any other official website maintains such a database. A state protects and supports its citizens. It is a testimony to the courage and determination of the teachers and children who attend schools in such dire circumstances. However, the horrendous number of terrorist attacks and the death and destruction left in their wake requires that the state ensures the guaranteed fundamental right to life and education. What lesson is really being taught to the girls studying in public schools, Sangota, and to the hundreds of millions of others who are or should be in school? Is it that their constitutionally guaranteed fundamental right to life and to education is, after all, meaningless? अब ये शर्म की बात नहीं है, किसी सहाफ़ी ने, अब बुरा ना माने, आप कहते हैं तनकीद, हम भी थोड़ी तनकीद कर लेते हैं आप पे, इस बात को उजागर किया। मेरी तरफ से बुरा मान ले। आपने इस बात को उजागर किया है। बल्कि मैंने ये रिपोर्ट भी हुई अब ये जरा पढ़ें और ये इसकी जब जजमेंट आई थी, नहीं आपकी जात की बात नहीं, हमने रिपोर्ट भी किया था। जरा देखिए, अब हमें मुल्क का भी देखना है चीजें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर उसको आप इस तरह से भी इस्तेमाल होती है और लोगों को मारा भी जाता है। और शर्म की बात यह है कि नोबेल प्राइज क्या है वो जिनको नोबेल प्राइज मिला है पाकिस्तान से, वो मतलब जिंदा कैसे हैं, वो भी एक मौजज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, और वो पाकिस्तान नहीं आ सकती है। क्या कितनी फख्र की बात है, मतलब, और हम में इतनी जरूरत भी नहीं है कि बात करें इस बात की, क्योंकि उनके पास बंदूक हैं, हमारे पास कलम है, वो उससे ज्यादा ताकतवर है। दिखा के दिखाइए ना, ये फर्क कब आएगा? ये एक चीज तो नहीं है, ये चलती रहती है बात को। अब आप जरा ये पैराग्राफ 10 इसका पढ़ दीजिए। वो कहते हैं तालीम मत दो बच्चियों को। अब उन्होंने ग्लोरी ऑफ इस्लाम को वायलेट किया है, आर्टिकल 19 का। जरा ये कोई पढ़ाता कोई क्यों नहीं है? सरकार क्यों नहीं ये कहती है कि हर जो इनके कम से कम सरकारी जो वो हैं मसाजिद, उनमें तो तनख्वाह पा रहे हैं ना जो इमाम, वो ये इस बात का दर्स क्यों नहीं देते हैं? वो खैर आजाद को ही उसको तो नहीं कह सकते हैं, मगर सरकारी को तो कह सकते हैं। अगर हमारी सोच ही ऐसी हो गई है ना। अब जरा पैराग्राफ 10 पढ़ लेते हैं। The first command from Almighty Allah to the Prophet Muhammad, peace be and blessing be upon him, and through him to the humanity, was Iqra, read. Iqra is a command. It is expressed in the command from the Arabic verb. The first command proceeds to then mention the pen, kalam, and the education of learning ilm. On the myriad of the things that the most benevolent Creator could have conveyed in the first revelation in the Holy Quran, He, in His infinite wisdom and mercy, considered reading, writing, and education to be of the primary importance. Prophet Muhammad, peace be upon him,
has also placed great emphasis on education. He enabled the non-Muslim prisoners taken after the Battle of Badr to secure their freedom if they taught the illiterate amongst the Muslims to read and write. This was probably the first ever use of a community service order used in some countries, which is the successor of a probation order. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, had also said to the men and women of the Islamic community to go as far as China, a non-Muslim country, to seek knowledge. Islam's emphasis on education and learning distinguished it from the prevailing civilizations, where education and learning was restricted either to a particular class or to a section of a society. Islam was inclusive and non-discriminatory. The most honored of you in the sight of Allah is the one who is the most righteous. Race, color, status, wealth, and gender were submerged under the Islamic equality principle. Ironically, education has come under attack in the Islamic Republic of Pakistan, despite the constitution guaranteeing equality of sexes, which compels the state to provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16. ये एक हमारी बेंच है, लार्जर बेंच है, तो उसके बाद फिर हम कन्वीन करेंगे. कोई वक्त नहीं दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनकी लार्जर बेंच कब ख़त्म होती है, क्योंकि अभी हमने बोर्ड नहीं शुरू किया है, मगर क्योंकि ये काफ़ी अहम मामला है, बहुत अरसे से चला नहीं था. तो अगर आप लोग मुश्तरका तौर पे या इंडिविजुअली अगर हमें कुछ बता सकें कि हम क्या आज किस किस्म का हुक्म जारी करें, बिलखुसूस आप जरा इसमें न्यूट्रल हैं. एटलीस्ट जर्नलिस्ट जो हैं उनके नोटिस तो उनको अभी वापस करे, FIA हरासा ना करे. नहीं, वो मैंने इनसे अंडरटेकिंग लेंगे कि एक्शन वगैरह कि आप लोग मुश्तरका तौर पे अगर कुछ पॉइंट्स नोट कर लें कि किस किस्म का हुक्म आज हम जारी कर सकते हैं, तो हम आके सुनेंगे. वक्त का पता नहीं, वो लार्जर बेंच टेक्स प्रायोरिटी. अच्छा नहीं, मेक श्योर आप टेलीफोनिकली या माय कोलीग इज सेइंग कि इसको कल पे रख लें. आपको कोई इतराज है? नहीं, कोई इतराज नहीं. आज हम ये लिख देते हैं, ये आज नो वन विल बी, आज का लिखें, इसमें लिख ही लेते हैं छोटा सा ऑर्डर. अब मैं देखें, कानूनी कार्रवाई अगर कोई बुला रहा है आपको, पता नहीं चाय पिलाने बुला रहा है किस लिए, बट आप किसी को पर्चा नहीं दर्ज करवाएंगे, पहली बात अरेस्ट नहीं कराएंगे अगर उसे तनकीद सिर्फ की है. ठीक है, आप कुछ और कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या चीजें, हमें तो नहीं पता है, मगर ये बात और बिलखसूस जर्नलिस्ट, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस स्पीच लिखा है, फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा है, तो 2 दफा आता है आर्टिकल 19 में, तो उसकी जरा अहमियत बढ़ जाती है. no one any amount of criticism or can be criticism. ठीक है अटॉर्नी जनरल साहब, ये जरा लॉ भी नोट कर लीजिए. आपको हार्शेस्ट पॉसिबल क्रिटिसिज्म, वो भी मैं इधर भी चले जाते हैं, मगर लॉ लिख लीजिए. प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021, ये भी एक लॉ है. इसके तहत एक इंडिपेंडेंट कमीशन भी बनना था, तो उसको भी आप देख लीजिए, जिसके अंदर ये हेरासमेंट, इंटिमिडेशन और ये इस तरह की चीजें अगेंस्ट द जर्नलिज्म जो है, उसके लिए कमीशन बनना था. वो आपका इंडिपेंडेंट कमीशन बन गया है. तो उनके कौन मेंबर्स हैं, क्या काम किया है अभी तक, कोई उनकी मीटिंग्स होती हैं, कोई कमीशन है, तो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, ठीक है ना, पर्सनल टू दिस लॉ, तो ये भी जरा बता दीजिएगा. ठीक है सर, वो जर्नलिस्ट ये कल पे कर देते हैं. बाकी बात तो कल ये कब बुलाए? वैसे आज भी है, सब जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं, फिर उसके बाद वो कहेंगे पेश नहीं हुआ, फिर गिरफ्तारियां और अरेस्ट करने शुरू कर देंगे. He made it clear any amount of criticism is no offense. In fact, it is a fundamental right of every citizen and in journalists in particular. Criticism. तो गिरफ्तार न किया जाए, इंटिमिडेट न किया जाए. ये कह रही है ना, इन्हें अंडरटेकिंग देंगे. अब अंडरटेकिंग के कुछ और असर होते हैं ऑर्डर से ज्यादा, ये शायद समझते हैं अटॉर्नी जनरल. एंड दिस अंडरटेकिंग विल बी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. सो यू विल नॉट से वन IG, इट्स अ होल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान will be bound by this undertaking. Because of kal, is it convenient for you to come tomorrow? I have to go back today. If my lords can take it up on first, I'll be here.
ये जरा आज क्या तारीख है? आज 29 है जी, 2 दिन की। कल क्या दिन है? निकालिए, ले लेते हैं। कल कोई केस है तो नहीं? तो निकाल आप सर, चलें आप Video link, my lord. चलें, ठीक है, it's okay. So it goes to tomorrow. That is fine. तो इसमें लिख लेते हैं, बल्कि आज का ऑर्डर लिख ही लें। इसमें लिखिए, this complaint was filed by five journalists, including the then president of the Supreme Court Press Association. Supreme Court Press Association, Press Association of Supreme Court. Press Association of Supreme Court. Including by the Press Association of the Supreme Court before this court, which was numbered as Suo Motu Case number 4 of 2021. Full stop. The said matter was not listed for hearing. For considerable time. Full stop. The Press Association, full stop. Mr. Amjad Nazir Bhatti was then the president of the Press Association, PSCA Karne, and we are informed that now it is Mia Aqil Afzal. We inquired from the president of the association whether he wants to pursue the matter, and he said he does. Full stop. An ex-president of the association, Mr. Abdul Qayyum Siddiqui, was the second complainant, and he too wants to pursue the matter. Messrs. Imran Shafkat and Amir Mir, two other signatories, are not in attendance. And the fifth complainant, Mr. Asad Tur, states that that he is not that he is not interested to pursue the complaint. We inquired from him whether what he had alleged regarding attack on him was correct, and he stated that it was, but the same has not been properly investigated. Full stop. The complainants before us have stated that a number of attacks took place on journalists which were not properly investigated, including those on Mr. Asad Ali Tur. Asad Ali Tur hai, Asad Tur hai. Asad Ali Tur, Messrs. Matiullah Jan, Imran Shafkat, Amir Mir, AMIR, Amir Mir, और कौन था? Full stop. The Attorney General is in attendance and is directed to file a separate comprehensive report with regard to each of the said journalists and what and where the what happened with the investigation and whether any charges were framed against anyone. It is alleged that those who carried some of these attacks were members of an intelligence agency under the control and command of the federal government. Full stop. The investigation officer, in case access has not been given to them, the investigation officer shall ensure that it is immediately granted and is not hampered in any way in conducting the investigation. Full stop. The president of the association and that of Islamabad High Court Journalists Association and Mr. Fayaz Mahmood
नाम लिखने ये एसोसिएशन का have brought on record a press क्या ये resolution passed by the association yesterday, on 27 January 2024, stating that the Federal Investigation Agency has issued notices to journalists, full stop, and they apprehend that they will be arrested if they attend to such notices, full stop. The notices were issued, have been issued on the purportedly since the judiciary was being maligned. Full stop. We have made it clear to the learned Attorney General that criticism of a judgment or an order, fair criticism of any is not only the right of journalists but also of every citizen of Pakistan, and no action, no criminal case or action be initiated if the matter is on the criticism of a judgment or order. Correct? Right. The restriction imposed. As stipulated in Article 19 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Honorable Attorney General states that state undertakes on behalf of the federal government. We authorized that no such action will be taken if it is simply criticism of a judgment or order is taken. Is this what you are undertaking? Yes, to this extent. Okay. अच्छा, Mr. ये आपका issue attend हो गया है? Special Lordship, may I request they have the concern of the journalist. Today notice may kindly be suspended, which was fixed for 11 today. ये देखें, अब हम देखें, मैं एक चीज के खिलाफ हूँ हमेशा से, कोई नई बात नहीं है, हर इदारे को अपना काम करने दें। अब बिला वजह हमने ये वजाहत कर दी ना, अब वो पता नहीं कोई और इंक्वायरी चल रही हो, मर्डर इंक्वायरी चल रही है, मुझे नहीं पता क्यों बुला रहे हैं। सर इसी की इंक्वायरी में हमें नहीं, देखिए ना, या तो आप हमारे पास कुछ लाइए, अब तो बगैर लाए हमने ये ऑर्डर कर दिया ना, आप कोई कंप्लेंट नहीं लाए। अब वो अगर आप किसी जगह चले जाए, कोई आपको कुछ नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों बुलाया है, आई डोंट नो, वो ना हमारे पास कोई नोटिस है ना कुछ है, कुछ फाइल भी आपने नहीं की ना, इसके बावजूद हमने ये ऑर्डर कर दिया। थैंक यू सर। आप ये लिख दें, नो अरेस्ट और एनी अदर कोर्सिव एक्शन। ठीक है, अपीयर तो हो सकता है, कोई कोर्सिव एक्शन को अरेस्ट मुझे नहीं, अब जो बेंचमार्क है कि अगर क्रिटिसिज्म इज ऑफ द जजमेंट, decision or order of the court, even if it's strongest possible criticism, that's our issue, not your issue. Absolutely, my lord. As far as it is a criticism of the judgment or order, no further proceedings. जब तक GIT बात तो खत्म करने दें। But if it and I say so because the balance between Article 14 and 19 has to be maintained. नहीं, देखिए ना, अभी आज की पहली तारीख है, एक सेकंड होगा, अब इसके बाद मजीद ऑर्डर हो सकते हैं ना, आप लोग कुछ फाइल करेंगे तो हम कम से कम नजर तो आए ना क्या चीज हम रोकें। नेक्स्ट डेट तक तो कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, सर कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, दैट इज नेक्स्ट डेट तक तो कुछ नहीं होना। एक रिक्वेस्ट हो सकती है कि जो FIA कोई डिटेल्स दे दे कि वो किस चीज के ऊपर कर रहा है, उसके बाद जब आप जाएंगे कर सकते तो वो बता देंगे। अब मुझे पता नहीं क्यों बुलाया गया, यही बताएंगे सर। अगर देखिए, आप जरा सुन लीजिए, कल अगर कोई थानेदार चीफ जस्टिस को बुलाए, सर सुन लीजिए ना,
مجھے بھی جانا پڑتا ہے. بالکل سر. وہ پاکستان پینل کوڈ میں کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے میرے ہمسائے میں کوئی مرڈر ہو گیا ہو, تو مجھ سے شاید پوچھنا ہو, میرے خلاف نہیں ہوگا, وہ شاید آپ کو ایز اے وٹنس بلا رہے ہوں. سر اب تھوڑا سا فرق یہ ہے, کچھ لوگوں کو آج بلایا گیا ہے, کچھ کو کل, کچھ کو سر یکم کو. تو سر آپ یہ چیز آپ تسلی رکھیں نا, ہم بیٹھے ہوئے نا, فکر نہ کریں. اب آپ فکر نہ کریں نا, مجھے ہم لوگ مفروضوں پہ جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے, بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے بلا رہے, ہمیں نہیں پتا ہے نا. یہ جیسے میں نے کہا کل کو مجھے بھی نوٹس آ سکتا ہے, مجھے بھی جانا پڑے گا. کون سے نیوز آئٹم پہ آپ کو بلایا ہے, وہ تو جب آپ پیش ہوں گی تو بتائیں گے کہ آپ سے گلا کیا ان کو. نہیں شاید آپ جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت اس کورٹ میں موجود ہیں, اور پھر وہ ایف آئی اے آپ کو پتا ہے کہ وہ کہیں گے آپ پیش نہیں ہوئے, اور وہ وارنٹ جاری کر کے اور پھر اریسٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کو آپ اگر ہم دیکھیں 2 دن کے لیے سسپینڈ کر دیں یہ نوٹسز. سر اب دیکھیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اس میں جرنلسٹ کون ہے, کوئی آپ نے درخواست دی ہے, ہوا میں ہم سب چیزیں کر رہے ہیں. آپ کم از کم اب آپ کے پاس وقت تو تھا, آج لے آتے کوئی درخواست تو دے دیتے نا. قیوم صدیقی صاحب جب آپ نے اتنا کام کیا تھا اور بھی کر دیتے. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کل تک کے لیے, جب تک کہ ہم یہ فائل کرتے ہیں اس وقت تک کے لیے ایف آئی اے کو فیڈرل گورنمنٹ روکے کہ وہ کسی جرنلسٹ کو نہیں بلائے گی, نہ اریسٹ کرے گی. تو کل تک اچھا یہ مجھے بتایا جا رہا ہے ڈی آئی جی ایف آئی اے موجود ہیں ادھر. جی ایف آئی اے کو پتا ہے کیوں بلایا گیا جرنلسٹ کو, کون سے سیکشن کے تحت نوٹس دیا آپ نے جرنلسٹ کو کیوں بلایا یہ بتا دیں. یہ کرٹیسزم کے متعلق ہے کوئی اور کرائم کے متعلق ہے؟ سر اس میں مختلف ہیں, کرٹیسزم کے متعلق بھی ہیں سر, اور صرف جرنلسٹ نہیں ہے اس میں تو نہیں دوسروں کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں, اگر جرنلسٹ کرٹیسائز کریں, اب مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے آپ اچھا ایسا کریں کل تک یہ جو جرنلسٹ ہیں نا ان کو آپ اٹارنی جنرل نوٹس کی کاپی بھائی ایک دن اگر ہو جائے تو کیا ہو گیا. My lords are minded to say so, but what I can noted your undertaking. Ji, what I am undertaking is that آپ سے یہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بھی پوچھا جائے, سمجھ گئے نا, فیڈرل گورنمنٹ سے have a meeting with I think what you should do, I will communicate. They may have some certain concerns. سر جے ٹی کس قانون کے تحت بنائی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے؟ صاحب ایک سیکنڈ, آپ ایسا کریں, have a meeting today with whatever the concerned person is, call the president of the association as well. جو legitimate concern ہے, as far as the criticism is concerned, we have no issue. Go ahead, criticize it. So just sometimes you have to tell people who are not lawyers, I mean, policemen have a different attitude towards things. So ذرا سے ان کو سمجھا دیجئے, ان کو بھی تسلی ہو جائے. تو یہ ہم نے آپ کے آپ اس کو اچھا تو یہ ہو گیا. اور کیا بات تھی؟ اب کل جو ہے اس کو لکھ کے لانا, یہ پھر کل پہ کریں, کل کچھ مشتاق صاحب کچھ ہے کل, تو کل پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں. اگر آپ کچھ فائل کرنا چاہیں تو کر دیجئے, تو اچھی بات ہوگی. اتنی جلدی فائل تو نہیں کر سکتے. ہاں ایک ہی ہوتا ہے. رپورٹ آپ کو تو ٹائم لگے گا نا جی, اس پہ 2 دن دے دیں. نہیں وہ وی ول گیو یو ٹائم. اب اتنے سال گزر گئے تو آپ کو ہم 2 دن کیا, ہم آپ کو زیادہ ٹائم دیں گے. وہ رپورٹ دیکھیے, اگر انویسٹیگیشن یو وانٹ اٹ تھرلی ڈن, دیٹ انویسٹیگیشن کین ناٹ بی ڈن ان 2 days, otherwise it will be no investigation. So we'll give you ample time. مطلب you want a fortnight, a month, whatever it is, ہم آپ کو دیں گے. تو کتنا My lord, 2 weeks is I believe sufficient. وہ رپورٹ والا کر دیں 2 ہفتے, وہ جو ان کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا لگتا یہ ہے کہ ایف آئی اے اصل ایشو کو کل سائڈ کرنے کے لیے جرنلسٹوں کو سامنے اس کے ساتھ ڈال کے نتی کر کے تو معاملہ ہی گول مول ہو جائے بس. اسی لیے آپ ایسا کریں نا, ان سے ایک میٹنگ کر لیں, کیونکہ یہ جو ان کی بات سمجھ مجھے آئی ہے کہ ہمارا کندھا استعمال کر کے دوسرے کو پروٹیکشن نہ دیں. یہ آپ کہہ رہے ہو یا وائس ورسا, آئی ڈونٹ نو. تو ان کو سامنے کر دیا جرنلسٹ کو, تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. آپ ذرا اپنے آفس میں ان لوگوں کو بلا کر کے یہ ایشوز دیکھ لیجیے. I will see them today. تو
और फिर कल पे है, ठीक है, शुक्रिया। बाकी बोर्ड जब फुल बेंच हो जाएगी वील रिकन्वीन। ओके। In reorder dated 20th August 2021 in SMC 4 of 2021, etc. Your Lordship, if you allow me, I can read the yesterday order, para number 1. आप पढ़ लें जैसे आप। जी सर। एक सेकेंड, लगा हुआ है ऑर्डर या निकल का? आप कर, आप जैसे आप कहना चाहें। Sir, complaint was filed by the journalist, including the then President Press Institution of Supreme Court, the Association Mr. Amjad Nazir Bhatti, before this court, which was numbered as suo motu case number 4 of 2021. The said matter was not listed for hearing for considerable time. We are informed that Mia Akil Afzal has been elected as the president. Therefore, we asked him whether he wants to pursue the matter, and he said he does. An ex-president of the association, Mr. Abdul Qayyum Siddiqui, was the second complainant, and he too wants to pursue it. Mr. Amar Mir was another signatory and is represented by London Mr. My name, and he too wants to pursue the matter. However, Mr. Asad Ali Tour, who was also a complainant, stated that he no longer wants to pursue it. On our query regarding the attack on him, he stated that the facts as stated by him are correct, but stated that the FIR registered in respect of the assault on him was not properly investigated. Mr. Imran Shafkat, the fifth complainant, is not in attendance, probably because he is living in Lahore. Your Lordship, he has instructed me I'll pursue his case as well. He wants to pursue his case. ठीक, आप तो कह चुके हैं। You are also appearing for Mr. Amir Mir, sir. Who? नहीं, वो तो आप कह चुके थे कल। जी सर। अब इसमें सर, Your Lordship, if we are proceeding on, करते रहिए, आप रुक गए। नहीं, मैं रुक गया हूँ सर। अब में सर ऑर्डर, if we are, ये अगर आप पूरा पढ़ लें फिर आप पूरा पढ़े अपनी बात कर लीजिएगा। The complainants before us have stated that journalists were abducted and attacked, but these crimes were not properly investigated, including attack on Mr. Asad Ali Toor, Matiullah Jan, Imran Shafkat, and Amr Mir. Your Lordship, one person was missing yesterday. Absar Alam was also attacked. Okay, आपके सामने ही हमने पूछा था, बस लेंगे, ठीक है। Most probably they missed. That a journalist directed to file separate comprehensive report with regard to the police investigation of each case and whether charges are framed against anyone, reports to be filed within 2 weeks. Mr. Toor alleged that those who carried out the attack on him themselves stated they were member of an intelligence agency under the control of federal government. The concerned investigation officer must be allowed to thoroughly investigate these crimes and given access to all concerned, and they must not be hampered in any way. The President of the Association and that of the Islamabad High Court Journalist Association, Mr. Fayaz Mahmood, have brought on record a joint resolution passed by the two associations on 27 January 2024, which state that the Federal Investigation Agency, the FIA, has issued notices to a journalist purportedly on the ground that judiciary was being maligned, and they apprehend that journalists will be arrested when they attend the office of the FIA. The learned journalists state that honest criticism, a judgment or an order is not a crime, and no coercive action will be taken, nor criminal case registered in this regard, and extend an undertaking on behalf of the federal government. 4. During the hearing, reference was made to the judgment of this court, PLD 2019, Supreme Court, page 318, wherein the founder of Pakistan was quoted, who wanted journalists to be responsible, independent, and fearless, and he had welcomed criticism as under. The power of the press is great, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a great trust, and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to be completely fearless if I go wrong, or if the leagues goes wrong in any direction of its policy or programmed. I want you to criticize it honestly. The President of Supreme Court of Bar Association is present, and since the matter is one of the fundamental rights of the citizen, was asked if SCBA would assess the court, and he stated that he will do so to come up.
अब आप पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा पॉइंट ये सर, अगर SMC 4 is restored and we are arguing on that, your lordship order of if SMC 4 is restored and we are restored sir, उसमें एक जो 5 it was never disposed of, it's pending. Yes, it was, yes. To restore, there's no question of restoring, it arises. I would like to, we were supported your lordship order of 2-member bench before the 5-member bench when they were passing an order. आज की बात बताएं ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आपका जो ऑर्डर था ना 2018-21 का, उसको अगर मुझे इजाजत में पढ़ लूँ, it was a very नहीं आप कोई पॉइंट बता दीजिए ना। पॉइंट सर ये बताता हूँ कि हमें पता है सारे ऑर्डर्स। जी सर, नहीं सर, वो जो आपने डायरेक्शन पास की थी ना उस ऑर्डर के अंदर, आया उसकी कंप्लायंस हुई है या किस हद तक हुई है? द फेडरल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू दैट। ओके, एक मैं पढ़ लेता हूँ। कौन सा तारीख का ऑर्डर? ये 20 अगस्त 2021 2-member बेंच ऑर्डर, और ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव योर लॉर्डशिप ऑर्डर है। एक सेकंड 20 अगस्त 2021। वही दिखा दें, मेरे पास 30 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। चला बिस्मिल्लाह की। He ordered 20th August 2021. An application has been submitted in court by 5 working journalists, including the President of Press Association of Supreme Court and the former President of said association, alleging large-scale violation of fundamental rights enshrined in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution, and that the government and the organization agencies under its control are primarily violating these fundamental rights. Number 2, the applicants state that the journalists are harassed, intimidated, attacked, and shot at, and there are no consequences for the perpetrator, and it is further alleged that those who लंबा ऑर्डर है, जरा पॉइंट बता देना, इतना तो पूरा दिन निकल जाएगा। बेंच तो बन गई है ना इसलिए, अब आप कोई वजह बता देना, ये पॉइंट वो पॉइंट है पेंडिंग, ये तो उसके बाद तो बेंच बन गई है। 5-6 पेज का ऑर्डर है तो पूरा निकल जाएगा इसमें। इसमें सर जो डायरेक्शन पास किए ना बेंच, नहीं डायरेक्शन बता दीजिए ना, बन गई ना, वो डायरेक्शन अभी भी हो सकती है, इसमें कैसी सी बात है? आप बताते रहिए। पेज नंबर 5, पैरा नंबर 5 से शुरू कर, सिर्फ बता दीजिए ना, आप खुद बताएं ना क्या डायरेक्शन चाहिए। सर मैं पढ़ के बताऊंगा ज्यादा कमाल है। आप वकील को तो खुद बताना चाहिए ना, इसमें आप क्या? मैं आपका नहीं सर, इसमें आपने जो ऑर्डर, आई डोंट नो व्हाट यू वांट, यू जस्ट से ये मुझे चाहिए, ये कर दें, वो कर दें, हम सुन लेंगे आपकी बात। जी लॉर्डशिप, मैं पैराग्राफ 6, आप पैराग्राफ छोड़िए ना, अपने तौर से बताइए ना कोई चीज। मैं ये बता रहा था कि आपने एक तो डायरेक्शन, यार हमें छोड़ दीजिए ना, आपका केस है या हमारा केस है? सर आपका केस है, मैं कहता हूँ जो ऑर्डर आपने दिया है, डायरेक्शन दी है, आया वो कंप्लायंस हम पूछ लेंगे उनसे, इतनी सी बात, इतनी लंबी तकरीर क्या करें, इनसे पूछ लेंगे, ये बता देंगे हुई है नहीं हुई है। अगला पॉइंट कोई बताए ना। तो रिपोर्ट ऑलरेडी कॉल कर ली है ना, कल ही वो कह दिया था कि इन सारी इस ऑर्डर में और कल की रिपोर्ट में बड़ा डिफरेंस है। ये जो इन्वेस्टिगेशन जिन FIRs पे हो रहा था, जो 4-5 FIRs का तस्करा हुआ, उन पे तो इनको ऑलरेडी कहा है कि उस पे रिपोर्ट दे देंगे। उस पे तो जो भी इस वक्त अपडेट है, जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो तो ये फाइल करेंगे। पैरा 6 पढ़ देता हूँ बस, उसके आगे फिर मैं खत्म कर लेता हूँ, दो बातें करता हूँ। The ever so frequent attacks on journalists and their abduction, including the federal capital territory Islamabad, is another violation of fundamental rights which has been raised in the application. It is stated that the Constitution in this Article 9. भाई अब आप देखिए ना, अब आपका you are in a way conflicted. You are yourself the government. एक से सुन तो ले ना। जी सर, जब जर्नलिस्ट से आप मिनिस्टर बन गए तो अब जिम्मेदारी तो आप पे भी हो गई, आप भी तो हुकूमत हैं आप। सर फेडरल गवर्नमेंट सुन तो लीजिए ना। जी सर, ये ऐसे तो नहीं होगा ना सर, हम मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम जर्नलिस्ट की पिटीशन उठाते हैं, कुछ जर्नलिस्ट पीछे हट जाते हैं, भाई पता नहीं रीजन क्या है। अब आप कह रहे हैं हुकूमत से पूछें, किस हुकूमत से पूछें? बलूचिस्तान की हुकूमत से पूछें? फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर। तो फिर आप रेजिग्नेशन भी दे दीजिए साथ साथ। सर वो नहीं, आप जरा ऐसी आप बातें जो कर रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपका पॉइंट बता दीजिए ना। यू आर अब तो आप ही के खिलाफ हम ऑर्डर भी करेंगे ना, अब आप 2 टोपियां पहने हुए हैं, सोच लीजिए, आप कह रहे पढ़ लें, चलें। मैं पैरा 6 चलिए। That ever so frequent attack on journalists and their abduction, including the federal capital territory Islamabad, is another violation of fundamental right which has been raised in the application. It is stated that the Constitution in its Article 19 guarantees. हमें ये पता है बातें ना, कोई पॉइंट बता दीजिए सर। ये सर मैं वक्त 2 मिनट लेता हूँ सर, मैं पैरा पढ़ लेता हूँ, इसके अंदर बड़ा हमें पता है, हम पढ़ के आते हैं कोर्ट।
सर इसमें पढ़ लीजिए अगर आप तसल्ली अटॉर्नी जनरल साहब, इस पे तो आपको डायरेक्शन कल वैसी मिल गई सर। ये लदी चीज है सर, कांडी मुझे लेट मी रीड। आप बताना क्यों नहीं चाहते हैं हमें? मैं सर बता रहा हूँ, लेट मी रीड, अलाउ मी टू योर लॉर्डशिप कांडी। It is stated that the Constitution in Article 9 guarantees the right to one's liberty, and Article 10 of the Constitution safeguard illegal arrest and detention. This matter becomes a matter of concern when the perpetrator are not arrested, and all the more so when it happens under the cameras of the Safe City project. This is the very important, Your Lordship. Sambat, inability in this regard may suggest incompetence which may constitute dereliction of duty or far worse abatement which is an offence. Therefore, notice be also issued to the Inspector General of Police Islamabad. पढ़ लिया हमने, पूरा पढ़ लिया, आपसे आगे हमने पढ़ लिया। आगे पॉइंट क्या आपका? अब सर ये है कि द सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में वर्क कर रहा है। आप हमें पॉइंट बता दीजिए प्लीज। पॉइंट ये है कि बिलियंस ऑफ रुपी हैज बीन स्पेंड ऑन द सेफ सिटी प्रोजेक्ट। जो भी जर्नलिस्ट के साथ मामलात हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, आप मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप पॉइंट बता दीजिए प्लीज। पॉइंट बताएं, वकील का काम होता है पॉइंट बताना। पॉइंट ये बता रहा हूं बिला वजह हमें तकरीर करना, हमने ऑलरेडी नोट कर लिए हैं बातें। ये नेक्सेस बता दीजिए ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद। सर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद है कि जो लोग दिन दहाड़े अबडक्ट होते हैं, वाई द सेफ सिटी। अच्छा भाई, तो आप हुकूमत में हैं या नहीं? मैं सर मैं आप मिनिस्टर हैं, जस्ट प्रोविंशियल केयर टेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर, पर यू कैन नॉट। आर यू आर हेल्पलेस? सर इसमें तो पूरी यू आर हेल्पलेस? यस ऑफ कोर्स, मेरे खिलाफ एफआईआर है सर। आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट इन क्वेश्चन। Who is the mysterious persons running the country if you are helpless? Everybody knows who is running the country. Don't say these things for a lawyer, it doesn't look good. Yes, of course. Either say I'm a डरपोक, I will not say this. ये क्या मजाक बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? everybody knows it. Then say it. Then say it. Sir, if I'm a caretaker, don't say this, please. Don't. इधर आप एक सेंसेशनलिज्म चाहते हैं तो कर लेते हैं, हम सीरियसली इस मैटर को अटेंड करना चाह रहे हैं। सर हम भी सीरियसली आपको सेंसेशनलिज्म चाहते हैं, एवरीबॉडी नोज इट। पता नहीं, आई डोंट नो इट, आप मुझे बता दीजिएगा। आप एक कंसाइज स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए, हम सीख लेंगे आपसे कुछ। नहीं सर, आपको एवरीबॉडी नोज इट। भाई ये सुप्रीम कोर्ट, ये अदालत है, ये खड़ा नहीं है, ना पार्लियामान है, ना कोई प्रेस का कॉन्फ्रेंस। आप जाके कर लीजिए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जितने मर्जी है। अगर आप, हम तो कह रहे हैं आप मुल्क चला रहे हैं, आप मिनिस्टर हैं, या आप कह रहे हैं बस मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मैं तो नहीं चला रहा हूं। सर मैं इधर ऐसी बातें आप कर रहे हैं, मतलब आप अपना मिनिस्टर अपना ही अपने क्लाइंट के खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर। खिलाफ की बात नहीं है सर, मैं हकीकत बता रहा हूं जो आप अगर। अच्छा बस आप बता सकते हैं हकीकत, लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। मैं लिख के मैं हकीकत बताना चाहता हूँ क्योंकि किसी को नहीं पता आज तक। सबको पता है सर। मिनिस्टर बनने से पहले आपने ओथ लिया था। वो तो सर मैं देखिए ना, मेरे खिलाफ एक एफआईआर। ये कानून की अदालत है, अगर कोई कानूनी बात करना चाहें तो कर दीजिए। हकीकतें हमें बताते रहिएगा, लिख कर दे दीजिए। आपको फाइल करना है, आज दिन तक आपने कुछ फाइल किया है? सर हकीकत तो यही है कि भाई हमें नहीं हकीकत का पता, हम जो चीज हमारे सामने आएगी उसका पता चल जाएगा। सर ये आपने खुद ही ऑर्डर पास किया होना, योर लॉर्डशिप। माशाल्लाह जनाब, उसके लिए आपको कई दफा कहा ना कि रिपोर्ट कॉल कर ली है कल इनसे, जो भी एफआईआर है उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कॉल की है इनसे। सर ये जजमेंट है, मैं अगर आप प्लीज आप हमें जजमेंट बताइए सर। ये एक दफा रिपोर्ट तो फाइल करने दीजिए अटॉर्नी जनरल को, जब वो फाइल कर देंगे उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चलेगी। फिर हम आगे जा सकते हैं ना, जिनकी एफआईआर जो कंप्लेनेंट है उनको कन्फ्रंट होगी ना वो रिपोर्ट, फिर वो बताएंगे कि उसमें इंक्वायरी हुई या नहीं हुई, या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और आगे मामला कहाँ पे गया, कोर्ट में किस स्टेज पे है, चालान फाइल हुआ नहीं हुआ, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये तो ये बताएंगे ना पहले। लेट हिम फाइल द रिपोर्ट फर्स्ट ऑन दैट स्पेसिफिक एफआईआर। ठीक है सर, लेट देम फाइल। If I may, as a matter of procedure now, just something that I wish to draw your attention to. On 20th of August, a two-member bench headed by my Lord the Chief Justice passed the order. Now, after that order, 1 second, I just want to clarify something. कोई filings हुई हैं आज कल? हाँ सर, वो फाइलिंग इस वजह से नहीं हो सकी, हमें अभी तक वो लिस्ट ही नहीं देगी कि किन मेंबर्स के खिलाफ, किन जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमात हैं। प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है, नोबडी वांट्स टू डू देयर वर्क एनीमोर। प्लीज रीड द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। सर हमने सीएमए बना के, अगर आप बनाते रहे, हम पता नहीं आप क्या करें, हमारे पास इनको दीजिए, आप ठहर जाइए प्लीज। अटॉर्नी जनरल, I don't know what we yesterday were very careful not to pass an order.
Why? Because we were very cognizant of the Supreme Court Practice and Procedure Act. Just go through section kaun sa hai iska. Okay, section 3. Read the section 3. Exercise of original jurisdiction by the nobody wants to have any concern with the law. I'm surprised. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Now we are cognizant of it. This is the law of Pakistan. Now somebody comes and gives a piece of paper here. I mean, we would love to do it. We can't do it. That's why we took an undertaking from you. I did not pass an order against you. I mean, if people can't understand this, I don't know. It's very clear cut. And this law has just been telecast to the whole of Pakistan. Now everybody should know about its provisions. Now if someone doesn't want to do it, I mean, and now please, it's not very. नहीं, एक सेकेंड, एक और बात भी बता दें आपको. अभी इसी महीने हमने एक ऑर्डर पास किया है. ये आप देख, ये इनको दे दें, उनको दें. SMG वाले. अभी एक बेल मैटर में एक इशू रेज हुआ था. My lord. Please read paragraph 4 का एंड से पढ़ दें. जी. We cannot ignore the above document, which had been produced before us in court, which purports to be a license of a submachine gun, SMG, which is a prohibited bore weapon. Notifications are also issued by the government exempting the requirement of obtaining licenses or permitting licenses for prohibited bore weapons to certain categories of persons, including chief justices, judges, ministers, parliamentarians, as mentioned in Schedule 1 of the Arms Rules 1924. Next para, the above has raised the following questions. 1. Under what legal authority had the Deputy Inspector General of Police, Mardan Region 1, Mardan, issued the said document which purports to be a license to carry an SMG, which is a prohibited bore weapon? 2. Whether licenses of SMG and other prohibited bore weapons can be issued. 3. If the answer to the above is in the affirmative, the applicable law and procedure and the person who can issue exemptions oblique licenses. 4. The number of licenses, including permits, issued with regard to SMGs and other prohibited bore weapons. 5. The approximate number of SMGs and other prohibited bore weapons in private use in the country. 6. Whether exempting certain categories of persons or granting them the right to obtain licenses for SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 25 of the Constitution, which mandates that all citizens are equal before the law. 7. Whether enabling the easy availability of SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 9, the fundamental right to life guaranteed by the Constitution. Next paragraph. 6. Now this is the important part. Yes. The office is directed to make a separate file and title it Submachine Guns and Other Prohibited Bore Weapons and register it as a Constitution petition under Article 184(3) of the Constitution with regard to paragraph 4 onwards. The matter prima facie is one of public importance with regard to the enforcement of fundamental rights, including Articles 9 and 25 of the Constitution. Therefore, it be placed for consideration of the committee constituted under Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. Now, but stop here. So yesterday's order, we had very aware that we are dealing with the case of the 2021 SMC 4, SMC 5 and CP 27. And incidentally, this matter came up about the Press Association of Pakistan. So we asked you, and you gave an undertaking on behalf of the federal government, which you are at liberty to do so. But it doesn't mean that the Supreme Court Practice and Procedure Act, which has just been upheld not very long ago, should not be complied with. This order that you read is 17th of January. That's right. And we were expecting something to come, some application and something. Despite that, we had made it clear that personal criticism of judgments is no issue, but we would want to attend to it in a serious manner. I mean, not somebody comes and throws one paper, somebody comes and says something. I mean, I don't know, sort of
I was duped into signing this petition. I don't know what's all these statements being made. I mean, if you file something, if you want to withdraw it, there's a procedure, you file something else. So, Shahzad Sokar Sahab, आप जरा बताएं, because we consider this matter serious, but we cannot pass order till it goes through the committee first. That was the understanding yesterday, that they will file a separate application. You know, we were expecting it. I mean, if someone doesn't want to, we can't force someone to do so. साहब से कहा भी था कि कुछ चीजें रिकॉर्ड पे, कुछ CMA कोई चीज आप फाइल कोई कह रहा है जी हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, JIT बन गई है, भाई हमें शक्ल तो दिखा देना कोई कागज के टुकड़े की. JIT बन गया, you should know. I mean, नहीं, हम नहीं चीजें देखते हैं भाई, हम जो हमारे सामने आता है ये पहले चीजें होती गई थी, हमें एतराफ करने में कोई बात नहीं, मगर उस वक्त तक इन चीजों का तरीकेकार नहीं तयन हुआ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, चीफ जस्टिस ले सकते हैं, कौन ले सकता है. अब तो कानून ने तयन कर दिया है ना, और वो कानून हमने कहा सही है. अब ठीक है, बात अहम बात है, हम ले लें, हमें बता दीजिए, कमेटी के पास चला जाएगा, आ जाएगा. मगर अगर सीरियसली इसको लेना चाह रहे हैं, अगर एक कोई कागज उधर से दे रहा है उधर से दे रहा है, हम आगे बढ़ें कैसे? हम आई डोंट नो कैसे बढ़े. हम सुमोटो लेंगे, फिर आप ही हम पे एतराज करेंगे कि जी आप ही अपना जो कानून आपने होल्ड किया उसी को आप वायलेट कर रहे हो. तो ये देखिए, ये बड़ा मुश्किल. अब जरा हम कानून पे चलना चाहते हैं. JIT का कोई नोटिफिकेशन भी इशू हुआ. अभी हमें क्या पता, हमें कोई किधर से पता होगा? वो कल को अटॉर्नी जनरल हम पे एतराज कर देंगे, जी आपको क्या पता. टुकड़ा तो लिया है सामने. JIT का नोटिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि इन विच लॉ द JIT हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड. एक सवाल से सवाल उठेंगे भाई. अब ATC के लॉ में तो है. अब आपको याद है भाई जी, मुझ पे बड़ा भाई, हम केस जो हमारे सामने, हम उस पे तो हमने ऑर्डर कर दिए, हमने डायरेक्शन भी दे दिए, बाकी चीजों की चलन की बात कर नोट भी कर लिया. अटॉर्नी जनरल गिवन अंडरटेकिंग, वो तो उनके हद तक है, मगर अब हुक्म हम कैसे करें इस बात पे, मजीद कैसे चलाएं? या तो हम खुद इसको क्या करें? सुमोटो भी हमारे पास अख्तियार अब नहीं है. उसका नोटिफिकेशन और जो नोटिस इशू हैं, कोई मॉडल सैंपल नोटिस किसी एक का भी होता तो वो उससे आपको पता चलता है कि इन विच लॉ द JIT हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट एक्चुअली दे आर गोइंग टू इंक्वायर फ्रॉम द जर्नलिस्ट. जी हमें आपकी ताउन की जरूरत है ना, बिकॉज क्या हाउ डू वी, हम कंसर्न्ड है, मगर कोई तरीकाकार तो अपना लेना. The only way forward is that either they move a proper application attaching those notifications and notices so that the. और ये जो प्रेसिडेंट साहब आपके ना, ये जैसे भी कह रहे थे कि हमें लिस्ट नहीं मिली, बात ये कि वो तो लिस्ट दें ना दें, आपको अपने पास तो पता है ना आपके मेंबरान कितने, उनको वो नोटिस इशू हैं, तो वो मेंबरान से तो वैसे भी नाम खुद पता कर सकते हैं. देयर इज नो नीड के उसमें जरूरी है किसी को तो आई होगी ना. जी भाई, यही पाकिस्तान में किसी को आया ही नहीं नोटिस, फिर उसका मतलब वो नोटिस ही फेक है. रात तक I was under the impression that such an application will be filed and a copy thereof. देखिए, ये जो आपको अभी चीफ जस्टिस साहब ने इसका एक्ट का जिक्र किया है ना, अब ये अपीलेबल ऑर्डर हो गए सारे. जी ऐसी है. तो अब हम यहाँ पे बैठ के कुछ करें, उसकी भी अपील होगी. अब इंट्राकोर्ट अपील का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी, अब आपको पता है ना, वो रिवाइव हो गया है. It has to go to the committee first. That is the first thing that happens here. नहीं, कल we heard it a lot. आज हमने adjourn किया, भाई हमने कोई तारीख नहीं दे दी, कोई महीने बर्बाद की. We can't tell somebody to do something. We can only kind of it's obvious and say it. So I don't know how to proceed further in the matter, because undertaking is there of the Attorney General. You are standing by your undertaking. कल होइए कोई गया कोई वहाँ पे FIA के सामने? Sir, नहीं, कल I had asked the JIT to not, or the not to press with the notices yesterday, because most of them were here and the court proceedings were underway. So they were adjourned till today, sir. Well, they intend to file it today. So give the latitude. Once the application is before. देखें, वो कल था, उन्होंने कहा तो वो एडजेंट हो गया आज के लिए. अगर तो आप कोई चीज फाइल करते हैं तो टिल सच टाइम आप उनको रोक देंगे, वो ना कोई भी फिलहाल करे मीटिंग. We just used our good offices. We even said have a meeting. But we can't pass an order, a direction. There's a big difference. Attorney General may do it, he may not do it. So we can only request him. There's a very different thing. We can direct him, and a request is a very different thing. 3-4 दिन, 2-3 दिन में आप फाइल कर दीजिए. I don't know how we proceed with what matter. सर CMA तैयार कर ली गई थी, सिर्फ लिस्ट की अवेटेड थी, हमें कल दी जानी थी, नहीं दी गई, फिर हमने सुबह तक इंतजार किया, नहीं दी गई. अभी सर अगर आप हमें 10 मिनट भी दे देंगे. सुन लीजिए, वो क्या मैं नहीं देता आपको लिस्ट की जरूरत नहीं, आप अपने
हम नाम टाइप कर देंगे। किसी एक को तो नोटिस आया होगा ना पाकिस्तान में, वो नोटिस हमारे पास है सर, सीएमए भी तैयार है, सिर्फ 10 मिनट दे दें। उनकी लिस्ट आप खुद टाइप कर दीजिए ना कि इतने साथियों को आई है, वो ना दें लिस्ट आपको तो वो कोई सर्टिफाइड कॉपी वो आपको फैसिलिटेट करेंगे तो नहीं, इस मामले जरूरी नहीं है ना वो। सर अगर 10 मिनट की कोर्ट या तो इसमें हेयरिंग में वक्फा कर ले, हम फाइल कर देंगे क्योंकि सब कुछ तैयार है। करें, हम आपको मना नहीं करेंगे, मगर हम इशू सर सिर्फ ये में नहीं होगी, वो petition होगी। Petition will have to be brought. सारे ऑर्डर अब अपील Petition will have to be brought under 184(3). Matter will have to go to the committee, and then the committee has to then. आपको उसको टाइटल चेंज कर दो। अभी ये मैटर था पेंडिंग, तो इसमें कम से कम कुछ प्रोग्रेस हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सर दो चीजें हैं, अगर सीएमए होगी तो वो जाहिर बात है सिर्फ नोटिस की आता है, पटिशन होगी, पटिशन तो माशाल्लाह आप लोग तो हमसे ज्यादा कानून आजकल जानते हैं, ठीक है, तो आप ही कर लें, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि वकील से थोड़ा मशवरा कर लो। आई एम श्योर शहजाद शौकत साहब से बात करेंगे, वो आपसे कोई फीस नहीं तलब करेंगे। सारे ऑर्डर अपीलेबल हो गए अब ये इंट्रा कोर्ट अपील में। अब हम अपने ही कानून को वायलेट करने चल पड़े तो आप ही लोग हम पे तनकीद शुरू कर देंगे। हमने तनकीद से इतराज नहीं है, मगर कानून की वायलेशन से बिल्कुल इतराज है। तो actually I was expecting some applications, no application is coming forward. My lord, with your permission. आप भी आ गए। I don't know. सर मेरी रिक्वेस्ट ये, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो कोई जल्दी नहीं है। आई डोंट नो क्यों हमारे इदारे इतनी जल्दी में कि ये कानून आपस में बात करें ना, आपके इदारे आपकी बस सर सिर्फ 7 डेज का, अगर हमें इलेक्शन के बाद तक के मैटर पेंड कर दें ये पूरा प्रोसेस। देखिए आई थिंक ये मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन के बाद तकरीर ना करें प्लीज। अगर आपको कुछ कहना है लिख के दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। हम ये हम फोरम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आकर के कल का अखबार में खबर लग जाए। आप लिख कर दे दीजिए तो हम इनसे पूछ भी सकते हैं, जिससे पूछना उससे पूछ लेंगे। सिस्टम तो हम बनाए ना, सही तरह से सिस्टम बने। थैंक यू। अगर आप इनको परसुएट करें सदर साहब को, वो हमें कोई जल्दी हम समझे तो वो कयूम सिद्दीकी साहब का वाला केस और वो हैदर साहब का, वही हैदर, अच्छा आए हुए आप आपको टाइम मिल रहा है ना, 184 में कन्वर्ट कर दो इसको। अगर वो फाइल भी होगा तो हमें कमेटी के पास जाती है। हम भी तो हम चाह रहे थे सिर्फ नोटिस की हद तक, अगर वो कर रहे हैं ना, वो तो अभी उन्होंने रोक दिया ना मामले को। सर आज भी बुलाया गया। वो भी देख रहे हैं। अच्छा अब ये हमें एक तरफ से बता दें, कानून पे अमल करेंगे ना, सिर्फ ये बताते हैं। सर इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम कब कह रहे हैं। सर इलेक्शन इज अ क्रूशियल मोमेंट, मीडिया को सारे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है सर इसमें। फिर आप सिर्फ 7 दिन की बात। वही साहब, आप यू आर हियर, इट्स गुड, so we can take up your petition and the other 2 petitions, and we can, I don't know, whenever they file, it will immediately go to the committee. The committee generally meets on a Thursday unless there is some reason why judges are not available. So because these 3 judges are not the committee, committees are different, the 3 senior judges are the committee. My Lord, my petition actually just merely seeks a balancing of the constitutional rights. It talks about how there is already a Supreme Court. So what do you want us to do? That's, I mean, I've read your petition. It's very good, but what sort of order would you want us to pass? My Lord, I've just, in especially these circumstances, the only thing that we are pressing is कि एक code of conduct से Supreme Court का ordered ही approved एक code of conduct बना था for broadcast media. अब सर Article 19 जो है, it clearly covers content. It doesn't cover one medium to the exclusion of other mediums. It talks about speech overall. But what we have right now is that broadcast media is regulated completely differently. So whatever you can't say on broadcast media, you're able to say on vlog, which makes no sense because Article 19 is equally covers content on any medium. अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो broadcast media पे आप नहीं कह सकते। What do you want us to do? The code of like it happened last time, perhaps a direction can be given कि stakeholders बैठ जाएं federal government के साथ और code of conduct जो already बना हुआ है और एक सर कानून भी बनाया था उन्होंने एक unit which law the code of conduct will be made. जी सर code of can the Supreme Court pass such an order? सर पहले भी किया सर, ये नहीं आपका ऑर्डर ये नहीं होगा कि legislate मदद कीजिए ना। कैमरा का जो code of conduct है वो तो मेरे ख्याल है चैलेंज हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अच्छा
ठीक है इसको मिलके, इसका तो कोड ऑफ कंडक्ट पेमरा का 2001 के ऑर्डिनेंस के तहत बना हुआ है सर। तो बट वो सर तो पुरानी चीज है, उसके अंदर एतराजात हुए थे मीडिया को, उस पर वो सिर्फ चैलेंज चल रहा था कि ये आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मिल बैठ के आप कोई कर ले, तो वो एक सेल्फ इम्पोज जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस वो बनाए गए। आई एम सीकिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ऑल आई एम रियली सेइंग इज कि सर उस वक्त अगर इक्वली रेगुलेशन होती, या आई वोंट इवन कॉल इट रेगुलेशन बिकॉज़ इट्स आल्सो प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच, रियली इट इज protection of speech. Sir, I'm asking you a different question. You are arguing your case. Sir, one second. Sir, I am saying that such a direction can be given because it's enforcement of constitutional rights. What order should be passed? Just a simple question. You are arguing your matter. That the federal government, my humble prayer is that the federal government be directed to sit with stakeholders and make for the same kind of code of conduct that they made for broadcast media to enforce Article 19. Fine. Wishes. If wishes can be, what do they say? Now, please tell us, can we pass such an order? I would believe that's enforcement. Never, you should never begin with a thing with I. Refer to the law. Can we do it? So assist us now. My lord, certainly this honorable court can enforce constitutional rights. Like we can request the Attorney General meet the President of the Supreme Court. We can certainly do that, but can we pass an order directing? That's a big difference. Sir, अगर ये भी हो जाए तो ये खुद भी सब तैयार हो गए। देखिए, there must be some law for regulating the YouTube. If there is no law, then there is no the rules. There is no law है। एक सेकंड, ये बात कर रहे हैं। जी सर। सर, बात ये enforcement of constitutional right के लिए सर पेमरा है, उसको उन्होंने रेगुलेट किया है ऑर्डिनेंस के तहत ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 का ही है, तो उसके अंदर वो चीजें बन रही है ना। इफ देयर सम लॉ दैट शुड बी रेगुलेटेड और शुड रेगुलेट दी, सर है डिजिटल मीडिया पे लॉ है, डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ, ये बताइए ना। उसमें उसके ऊपर कोर्सिव एक्शन लेने के लिए तो है, उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना। आप पिका में आप उसको कर तो रहे हैं, बट वो आप हाउ टू रेगुलेट दी यूट्यूब, ये तो बताइए आप। My lord, there are laws. The only problem is that they don't come with specificity, and they are more on the criminal side. And problem होती है कि कोई gray area नहीं है, या तो they say wild things on digital media and wilder things happen to them, and that's the problem, isn't it? Because there isn't that legal framework. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब वो 2002 का जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसमें तो कवर होते हैं, बिकॉज पब्लिकेशन का मतलब इंटरनेट भी है उसके। सर पेज 15 पे मैंने वैसे टेबल लगाई हुई है सारे लॉज की। पेज 15 पे सर अगर आप नंबर 3 पे देखेंगे, सो देयर इज दैट रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, प्रोसीजर ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स ऑफ 2020। अच्छा, ये पेज 15 है पिटीशन की। दिस इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 27 ऑफ 2022। नहीं, वो लॉ कौन से आप कह रहे हैं सर? ये है रिमूवल एंड ब्लॉकिंग की जो फर्स्ट प्रेयर है ना, माय लॉर्ड, डायरेक्ट्स द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक कोड ऑफ conduct. Tomorrow you will be the first to criticize us that this is amounts to censorship. Okay, and the Supreme Court had no jurisdiction. Please assist us on these points. I mean, what power are we exercising? Are we legislating? Yes. Are we interpreting a law? Yes, we can do that. If there's some provision in the law, we can maybe interpret it in your favor. But if there's no provision in the law or in the Constitution, how do we go ahead with it? We can certainly request all stakeholders to meet and come up with a code of conduct. So, but does it translate into a binding judgment of the Supreme Court that can be acted upon then or not? If someone says, I won't, then federal government says, I won't do it. Then what do we do? My lord, we issue them a contempt notice on what basis? On a wish? My lord, my humble submission is that the enforcement of constitutional rights like Article 19, which not only put restrictions but inherently regulation is required. Sorry. So, sir, अभी तो सर आप जिस तरह आपने बात की, I think from whatever casual talk I've had with everyone is ready to sit down and talk about it. We can start with that. Not in this case, my lord. Not in this case. एक सेकंड मती साहब, ये बात कर रहे ना, थोड़ा सा हम एक दूसरे का लिहाज तो रखें ना। हैदर वहीद साहब, देखिए, अगर आपको कैजुअल टॉक्स करना है तो पिटीशन लाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। मैं कह रहा था, तो आपको कौन मना कर रहा है? आपकी पिटीशन देखिए पेंडिंग है 2022 से। ठीक है, हम 24 में आ गए जी। जितनी मर्जी आप टॉक्स कर लें, आपको मना कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि अदालत
क्या कर सकती है? आपकी मदद चलें, ये भी कर लें, मदद भी करना चाहते हैं, हम करें कैसे? ये बताएं हम किस किस्म का ऑर्डर पास करें? My Lord, my humble submission is that the enforcement of Article 19 and the cognizance... बताएं ना आपने, अच्छा, enforcement of which provision of Article 19? ये भी आप देखें, ऐसे गोल्ड ऐसे ना कर देना। Article 19 में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ Read Article 19, my Lord. ये आपने लगाई है कॉपी? आपको एक मिनट से मैं वैसे पूछ रहा हूँ, इन द मीनवाइल मैं पढ़ लूँ। ये रिमूवर एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट प्रोसीजर ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स 2021। My Lord, I'm just going to provide, sir, I'll provide. इसे किताब में पैमरा लॉज के आगे प्रोवाइड। आप बता दीजिए क्या कौन सी आर्टिकल 19 में एक पार्ट है जो कि इजाजत देता है, दूसरा पार्ट है जिसमें ममानियत है। आप ममानियत कर रहे हैं या इजाजत वाली बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ आर्टिकल कह नहीं, कानून क्या कह रहा है? My Lord, कानून ये कहता है, पढ़ लीजिए प्लीज। जी सर मैं आर्टिकल, आजकल फैशन हो गया बगैर पढ़े चीजें आर्ग्यू करो। भाई देखिए, आर्टिकल 19 के दो पहलू हैं। एक पहलू कहता है सबको इजाजत है, फिर उसके बाद वो जाके रुकावट डाल देता है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल। I'll read आर्टिकल 19। हाँ, तो अब हमें आप कह रहे हैं आर्टिकल 19 को इन्फोर्स करें, तो कौन सा पहलू? दोनों पहलू करें, एक पहलू आप जी मैं पढ़ देता हूं पहले। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी of Islam or the integrity, security or the defense. एक सेकेंड, तो एक हो गया इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, पहला रुकावट। दूसरा इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस। चलिए इसको एक ही हम तस्वुर कर लेते हैं। दो और एनी पार्ट thereof, friendly relations। ये हो गया तीसरा रुकावट आ गई, तीसरी रुकावट आ गई। पब्लिक ऑर्डर, ये चौथी रुकावट आ गई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसेंसी और मोरालिटी, इसको पांचवी रुकावट कर लें। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, छठी रुकावट ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो 7 रुकावटें आ गई। आईन ने बनाई है, जरा ये हम वजाहत करते चलें, हमने नहीं बनाई है। बिल्कुल ठीक है। अब आप जब कह रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 19, तो अब आप बताइए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात कर रहे हैं, जो 2 राइट्स दी गई हैं, फिर इसमें ये आ गए रिस्ट्रिक्शंस। तो आप ये सिर्फ ये बात करना कि आर्टिकल 19 की इन्फोर्समेंट से मुराद आपकी क्या है? My Lord, my humble submission is that the entire article is being applied to broadcast media but not to digital media. We agree. What do we do? आप तो ये चाहते हैं कि इसको रेगुलेट कर लेना। You want कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो YouTube है, इसको रेगुलेट किया जाए, ये आप कह रहे हैं ना? इसको मैं कह रहा हूँ जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड है, उसको जो है डायरेक्ट किया जाए, स्टेकहोल्डर्स बैठ के वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट। आपने जो बात कर दी ना, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड, चलिए कानून की बातें कर लेते हैं ना। नहीं, वो आप सिर्फ ये बताइए, you're a senior constitutional lawyer. Now, what do we do? We agree with you. Let's even go that far. How do we do it? After all, everything must be done in a particular way. Yes, my Lord, to enforce constitutional rights of Article 19 and 25, and in keeping with balancing of constitutional rights, a direction can be given to the federal government. It is, after all, an executive. You're not asking for legislature to make law. A direction can be given to the federal government that made the first code in any case. It was the federal government. One second, please argue this case. I don't know what that case is or what the first case is. Please argue this case. Okay, let's go step by step. Okay, let's assume this direction is given. Second assumption is, let's assume federal government does what? It sits with stakeholders and makes a code of conduct. Who? It can be journalists, lawyers. They can decide. Please देखिए ना, don't just say. आपका डायरेक्शन तो सिर्फ federal government को। ये देखिए ना, ये स्टेक होल्डर्स वो अपने 4 दोस्तों को बिठा लेंगे अपने साथ। हाँ जी, ये स्टेक होल्डर्स हैं। अब आप ये ऐसी बातें जब आप करें, कोई चीज लाए अदालत, तो सोच समझ की करें ना कि ये अब बता दीजिए वो क्या हम करें आगे। पार्लियामेंट हैज टू मेक द लॉ। अब तो फिर वो पार्लियामेंट कल हम पे करेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इख्तियार इस्तेमाल कर लिए, ये हमारा काम है। तो ये दरख्वास्त आप अगर सारे मेंबरान पार्लियामेंट को भी आने वाली है, उनको भेज दीजिए, शायद वो बना दें आपके लिए कानून, हमें नहीं पता। सर मैं लेजिस्लेचर के लिए डायरेक्शन नहीं मांग रहा, मैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ कि कोर्ट उन्होंने पहले भी ब्रॉडकास्ट का बनाया, डिजिटल का भी बना दे। के लिए कोई सपोर्ट ऑफ लॉ तो चाहिए ना। अगर अटॉर्नी जनरल ने बात कही तो नहीं है,
اگر انہوں نے کہہ دی ہم نہیں کرتے یا ہم آئین کے تابع ہیں اور ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. سر پی ٹی اے ایکٹ اور پیکا میں بن سکتے ہیں, یہ انڈر رولز بنانے کی جہاں پاور ہے وہ گورنمنٹ آلریڈی جرنلسٹ کو جو ہے جس طرح سے گیگ کر رہی ہے. ایک سیکنڈ آپ کو سنیں گے نا ذرا ان کی بات. نہیں آپ لوگ تشریف رکھیں 2 منٹ, ہم ذرا قیوم صاحب ذرا آپ دونوں تشریف رکھیں, ایک ایک کو سنیں گے, آپ کوئی فکر نہ کریں, کوئی نہیں جائے گا جس کو نہیں سنے. My lord. So, my lord, there is statutory law under which this court can be made. Exactly. Dekhe, you have hit the nail on the head. Yes. There is statutory law. To give us some statute to help you. Yes. Pakistan Telecommunication Reorganization Act jo hai. Sir, I would rely on the PTA Act. But it took a long time to come here. Sally. See, with the provision. Read it. Yes, provision. My lord, इसमें I will, however, submit, and this is. No, let's read it. जी सर वो उस पे आ रहा हूँ. Sir, it seems I'm just making a submission, sir. Sir, I'm just making a submission that at this point in this environment, it seems like everyone is very sensitive about this environment. ये कोर्ट तो सर अगले 6 दिन में वैसे भी नहीं बनेगा. Forget it. The environment. We decide cases. We don't care about environment. मैं तो सर अपना. You like our decision, you don't like it, fine. नहीं सर मैं तो इस environment में आप नहीं देखिए. अब आप ये कह रहे हैं कि मैं एनवायरनमेंट को देखते हुए फैसले नहीं सर मैं कह रहा हूँ मैं तो कंसेशनरी बात एज अ पिटिशनर कर रहा हूँ कि मैं तो इस चीज के लिए बताया क्योंकि 6 दिन में तो कोर्ट वैसे भी नहीं बनेगा. अगर ये चाहें तो रख लें बाद में 8 तारीख के बाद, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बट नॉट नेसेसरली समथिंग. इनकार कब कर रहे हैं? जी सर हम आपसे इनकार कब कर रहे हैं? हम सिर्फ कह रहे हैं हमें तरीकेकार बताइए. जी सर हम अगर आपसे इनकार कर रहे होते कि इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बात है. अभी तो आपसे कह रहे हैं चले मफरूजे के तौर पे मैं इसमें सर एक जो है वो सारे कवानीन जो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं जिसके तहत कोर्ट बन सकता है टू एनफोर्स दीज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सर वो एक आपको रिटर्न सबमिट कर देता हूँ कि ताकि जो आप कर दें जिसमें टाइम चाहिए. जी सर वक्त चाहिए. जी सर मैं सबमिट कर दूंगा सर. जी सर इसको अच्छा चलिए ठीक है. फिर अगर आपको वक्त चाहिए मगर ये जरा ये हमारी रहनुमाई कीजिए. बिल्कुल ठीक, क्योंकि वकील का काम होता है आईन और कानून के हवाले से रहनुमाई करे जज को. वो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए और मेरे ख्याल में मैं भी बहुत सारे ख्यालात रखता हूँ मगर ताबे हूँ आईन और कानून के. बिल्कुल ठीक है. आप कितना वक्त चाहिए आपको ये चीज करने में? सर आई थिंक 10 days 1 week ठीक है. एक दरख्वास्त आ रही कि इलेक्शन के बाद करने, हम इनसे भी पूछ लेते हैं. ठीक है सर ऐसे ही मैं ये देखें ये जल्दबाजी में ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए. अब इतना अरसा गुजरा है, जहां तक वो स्पेसिफिक केसेस थे वो तो हमने उनको कह दिया हमें रिपोर्ट दीजिए. हम अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीजें वो फौरन कर देते हैं. अगर कोई एक देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जजमेंट वो कमिटी अगर शायद हो सकता है इनकी भी दरखास्त आ जाए फिर 184 की कमेटी में भी चला जाता है फिर उसको भी लगा देते हैं. चलिए अब आप बात कर रहे थे मतीउल्लाह जान साहब, तशरीफ लाइए. थैंक यू माय लॉर्ड. माय लॉर्ड मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की इशू है या पिटीशन है इसको क्लब ना करें हमारे इस प्रेजेंट केस के साथ, because there is a coercive environment और इस coercive environment में किसी किस्म के एक सेकंड आपको एक बात रोक लूं. ये जो केसेस हैं 3 केसेस हमने कुछ क्लब नहीं किए, ये चले आ रहे हैं 7. ये कम से कम हमें ना कहें कि हमने क्लब किए क्योंकि ये चले आ रहे हैं सर. अब इसको डीलिंक करना होगा. अब कोई किसी की दरखास्त आएगी हम देख लेंगे. इस मौके पे ये क्लब्ड हैं, काफी ऑर्डर्स भी पास हुए हैं. तो अब हम ये अच्छा ठीक है अगर आपको दरखास्त देना आप दे दीजिए कि हम इसको कर लें. तो कम से कम अब क्यों क्लब हुए मुझे सारे ऑर्डर्स पीछे पढ़ना होंगे कि वजह क्या थी. अच्छा दूसरी बात भी आपको सर दूसरी बात भी कर दूं. कल आपने एक बात उठाई थी कोर्ट में, हमने फिर भी सुन लिया. आपने जिक्र किए थे एक सहाफी का केस अरशद शरीफ. वो मैंने चेक किया वो 5 मेंबर बेंच के पास चल रहा था. अब क्यों चल रहा था 5 मेंबर बेंच के, क्या वो चेंज होकर 3 मेंबर बेंच के पास हो सकता है? अब वो इतना वक्त नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हुए. 3 मेंबर तो चले गए ना. तो
اچھا اس میں دوسری بات یہ ہے، اس میں میں نے دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ اور ان کی بیوہ دونوں کے وکیل ہیں، جس کیس میں وکیل اپیئر ہو رہے ہیں آپ کا مناسب نہیں ہے اس میں آنا. وہ ان کو کوئی بات ہے ارجنٹ اپلیکیشن دینا ہے وہ دے سکتے ہیں، یقیناً وہ ہم سے زیادہ بہتر قانون سمجھتے ہیں، اور وہ اگر دینا چاہیں اب پھر اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اگر اس کے ساتھ لگائیں گے تو 3 ممبر بینچ ہے، اب ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ اس پہ کافی وقت مگر میں نے سرسری طور پہ دیکھا 5 ممبر بینچ. یہ بات تو آپ کی ہو گئی. اب آخری بات بتا دیں یا کوئی اور بات ہے؟ سر کوئکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 7 دن رہ گئے ہیں الیکشنز میں، یہ سب مان رہے اس بات کو. So what I'm saying is کہ اس کے بعد ٹھیک ہے صحیح مناسب بات کے بعد سارا مگر ہم سن لیں ان کو صدر صاحب کو سن کر کے، اور صدیقی صاحب کو اعتراض نہیں اگر 7 دن کے بعد. جی سر ایک آخری ریکویسٹ ہے، یہ میں نے ایک مئی 3 2014 کو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا شیل ناٹ کوٹ فار کورٹ رپورٹرز. دس از جسٹ فار دا ریکارڈ، اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ آپ کہیں پھنس تو نہیں جائیں گے. میں نے یہ 2014 میں یہ آرٹیکل لکھا تھا، سوچ لیجیے آپ پھنس تو نہیں جائیں گے اس میں. سر میں نے 2014 کا لکھا تھا، ظاہر بات ہے پھنس تو نہیں جائیں گے سر. ججز اور جرنلسٹ ہمیشہ اچھا اگر آپ سر ماضی کے فیصلوں پہ ہم دونوں پھنستے ہیں، جو ہم کرتے رہے ماضی میں. نہیں دیکھیے آپ شاید پھنس جائیں اس میں. میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کا حوالہ دوں، مگر نہیں سر آپ کی بات ٹھیک ہے. آئی ایم ولنگ ٹو فیس اٹ سر، نو پرابلم. اگر اسی کو کر دیں تو آئی ول بی دیئر ٹو فالو اٹ. یہ دیکھیے بہت سارے بہت اچھے پوائنٹ ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے اس سے میں اگری کروں یا نہ کروں، مگر ابھی ہمیں ڈھانچہ چاہیے کہ یہ ہے قانون کی عدالت کہ ہم ایسا حکم کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر سوال ہوگا کہ کیسے کریں. بس سر اس کورسو ماحول میں ضابطہ اخلاق کے اوپر بات تو میرے خیال میں کرنا ویسے ہی ہے کہ کسی بھی چیز پہ انگوٹھا لگوا لیں آج کل صحافیوں سے آپ، کیونکہ اتنے بڑے نوٹسز جاری ہوئے ہیں تو اب تو ہمارے نمائندے کسی بھی چیز پہ انگوٹھا لگا دیں گے. تو میرے خیال میں اس کو ڈیلنگ کرنا بڑا ضروری ہے سر، اس کیس کو الگ کرنے. آپ ہم سن لیں گے نا، شاید یہ ناراض ہو جائیں حیدر وحید صاحب، اس میں آپ پارٹی نہیں ہے، یا تو آپ پارٹی بننے کی درخواست دیں کیونکہ ابھی آپ اسٹرینجر ہیں ٹو دی پروسیڈنگز. سر میرا نہیں یہ دیکھیے یہ ہم آپ کو پھر بھی سن رہے ہیں مگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم آپ کو نہیں سنیں. سر میں اپنے کیس کے حوالے سے ایک ریکویسٹ کر لوں، اگر وہ میرا کیس جو الگ سے لگا ہوا ہے کڈنیپنگ والا، اس کو اس کیس کا نمبر کیا ہے سر؟ ایس ایم سی وہ سوموٹو نوٹس تھا سر 2021 کا ہے. یہ نمبر آپ کو پتا ہے؟ آئی ایم سوری سر وہ اب اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ ہمیں بھی نہیں یاد، آپ کو بھی نہیں یاد. انسان اپنے کیسز کے نمبر یاد رکھتا ہے. تو بس آپ الگ سے سنیں سر، اس سے آپ اپنے کسی ساتھی سے پوچھ لیں یا کمپیوٹر میں چیک کر لیں، نمبر ہمیں بتا دیجیے. مجھے صرف یہ خدشہ ہے کہ اس کیس میں اگر ہم سمجھ گئے آپ سامنے ہم جاتے ہیں ہم سمجھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹرڈکٹری آرڈر نہ ہو جائے. یہ بات ہے نا سر، مجھے یہ خدشہ ہے کہ جن لوگوں پہ الزام ہے یا ہم لوگ اپنی اسٹیٹمنٹ میں لگا رہے ہیں وہی لوگ ہمیں جے آئی ٹی میں بلا کے یہ ایف آئی اے کے نوٹسز میں تفتیش کریں گے تو پھر بڑی کنٹرڈکشن ہو جائے گی، ہم پہ پریشر ہوگا کہ وہ کیس وڈرا کر لیں. اس کیس میں آپ چیک کریں. ایک منٹ ٹھہریے، سال یاد ہے آپ کو؟ جی سال یاد ہے 2021 سر. کسی کو نمبر پتا ہے آپ کے ساتھی برادری میں؟ کرمنل اوریجنل 48 of 2020 سر. کرمنل اوریجنل یہ تو کنٹینٹ نوٹس ہوگی. جی جی اس کے ساتھ ہی سر کلب نمبر بتائیے. کرمنل اوریجنل 48 of 2020 یہ کنٹمپٹ 48 of 2020 سر. اس کے ساتھ ایک کلب ہوا تھا. اچھا اب ٹھیک ہے، بس سمجھ گیا آپ کی بات، بس سمجھ گئے. اچھا یہ ایک بات جو اچھا آپ کچھ فرما رہے تھے، ہاں کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں ان سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب، جو پریزیڈنٹ آپ ہیں. جی سر ہماری تو ریکویسٹ صرف یہ تھی کہ کورٹ نے کل آبزرویشنز بھی دی تھی نوٹسز کی حد تک، لیکن نوٹسز ابھی تک وڈرا نہیں ہوئے. آج بھی کافی سارے دوستوں کو بلایا گیا. اب کورٹ کی آبزرویشن ہے کہ جناب اس کے لیے سی ایم اے فائل ہونی چاہیے تھی. سی ایم اے فائل یہ ہماری بالکل آبزرویشن نہیں ہے. نہیں کورٹ نے آپ کو ناراضگی کی کوئی پٹیشن آپ کو فائل کرنی چاہیے نا. یہ 184 آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپیلیبل بن گئی ہے. پٹیشن تو پروڈر اس میں آ جائے گی نا، تو وہ کر دیں نا آپ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ابھی ہماری ریکویسٹ صرف اور صرف جو کال آپ نوٹسز جاری ہوئے ہیں جن کے اوپر پریشر ہے کہ جناب فوری طور پر آئیں. جن دوستوں نے اپنی بیٹس کور کرنی تھی، کسی نے اڈیالہ جیل جانا تھا. اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے سر. ہم نے اگر آرڈر پاس کیا تو ہم یہ بتا دیجئے ہم اس تنقید سے کیسے بچیں گے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی کر دی؟
बता देना, हम कर देते हैं ना। जैसे इनसे हम पूछे थे हैदर वहीद साहब से कि भी अब एक सेक्शन 3 हमने आपको भी पढ़ के सुनाया है, उस कमेटी के पास जाता है, अगर हमने ऑर्डर कर दिया तो आप ही लोग सबसे पहले तनकीद करेंगे कि आपने आइन और कानून पे का तहफ़्फ़ुज़ करने का हल्फ उठाया और खुद ही कानून तोड़ रहे हैं, जो कि खुद फुल कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही उसको सराहा है। सर अभी मुझे समझ नहीं आता, मुझे अगर इसका जवाब दे दें तो मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। सर मैं इसी का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो अगर खुद कर लेते हैं आसान है, एक पिटीशन फाइल कर दो। सर वो बिल्कुल है। नहीं आप देखिए, बात सुनिए सदर साहब, आप पिटीशन फाइल करें, और वो जो कल इन्होंने अंडरटेक किया था अटॉर्नी जनरल ने, उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं ना? सर मेरी एक रिक्वेस्ट बात तो सुन लें पहले प्लीज। एक वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं भाई, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं अब, जब तक इलेक्शन तक का टाइम है सके हमने अंडरटेकिंग दी, उनको बोले अभी रोक दे उसको, 4-5 दिन की बात है, उसके बाद फिर यही रिक्वेस्ट है। वो ऑर्डर में हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम समझते हैं क्या चीजें हम कर रहे हैं। चलें, आप क्या कहना चाह रहे थे कईम साहब? ये सर सवाल तो एक ही है कि क्या सहाफियों पे कानून लागू होता है या नहीं होता है? क्या जर्नलिस्ट पे कोई कानून लागू होता है या नहीं होता है? ये भी जर्नलिस्ट पे बहुत कानून लागू होते हैं। तो हम भी सिटीजन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो, इसीलिए जहाँ आपकी पिटीशन पे तो हमने फौरन ऑर्डर कर दिए जी। अब जो दूसरे मसले आ रहे हैं वो हमारे सामने अगर कोई ले आए ना फॉर्मल तरीके से तो अच्छी बात होगी। हमने तो इनफॉर्मली इनसे बात करके अंडरटेकिंग भी दिलवा दी। तो अब आप अपना केस में कोई बात और करना चाहते हैं तो बताइए। जी इसमें क्योंकि अभी ये मीडिया रेगुलेट करने के हवाले से कर रहे थे बात, और सारी चीजें तो उस पे एक बहुत ज्यादा हमारे साथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ क्या होता रहा, वो एक टेस्ट केस है। अदालत जरा उसके भी फैक्ट्स देख ले कि किस तरह से जर्नलिस्टों को जो कुछ हुआ वो हम देख रहे हैं ना। अब आप कुछ और मशवरा दे दें कि ये ऑर्डर पास कर दें आपके केस में, वो हम कर सकते हैं। नहीं वो तो जाहिर है अभी चीजें सामने आएंगी तो फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल हमने उनको 2 हफ्ते उन्होंने वो 2 हफ्ते में आते हैं तो 2 हफ्ते में देखें क्या कहते हैं फिर। बिल्कुल, मगर उसमें कोई और पहलू रह गया। एक बात निशानदेही की कि अफसार आलम साहब का नाम रह गया था, वो बस हम ऐड कर देते हैं। और कोई बात है तो बता दीजिए। बाकी सब जो चीजें सामने आएंगी, कुछ चीजें थी जो आपके गोशे गुजार करनी थी। जब हम दूसरों को कहते हैं ना कानून पे अमल करो, नहीं बिल्कुल ठीक तो अदालत तो सबसे ज्यादा करना चाहिए ना। तो इसलिए आप शायद समझें कि वो हम फलां ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, फलां ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, मगर अब हम भी कानूनी किताबें हैं। नहीं, कानून गलत है। डेफिनेटली कोर्ट हवा में तो कोई ऑर्डर नहीं कर सकती, जाहिर है चीजें आएंगी। तो कम से कम जो है वो इतना जोर कर दिया जाए कि जो नोटिस हैं जो इलेक्शन के बाद तक जरा उसको वैसे जरा देखिए, बहुत से लोगों को बहुत सी नोटिस आई हैं और उन लोगों ने तो कोई इतराज नहीं किया जाने के लिए किसी इदारे में। बिल्कुल, अब शायद आप बात समझ गए हो, शायद ना समझे हो। तो जब उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी आपको, फिर आपको मसला क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो अंडरटेकिंग करवाई उनसे, हमने देखिए हमने मोहतात तरीके से ऑर्डर नहीं किया था, हम समझते थे हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बहरहाल कोई भी हम पे तनकीद करे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फिर हमने आइन और कानून पे चलेंगे। अब इनको दोबारा कह देते हैं यू स्टैंड बाय योर अंडरटेकिंग। कब तक की आपकी अंडरटेकिंग? ये ओपन एंडेड अंडरटेकिंग है। आवाज एक बुलंद, आप थोड़ा सा ऐलान कर दीजिए अपनी अंडरटेकिंग का ताकि सब सुन लें। My lord, undertaking as recorded in paragraph 3 of yesterday's order stands. सर वो अंडरटेकिंग सर दूसरी हद तक है। वो अंडरटेकिंग ये है कि किसी की क्रिटिसिज्म के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हम ये चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं ना बहुत सारी चीजें। सर रिक्वेस्ट है सर, नहीं रिक्वेस्ट नहीं करें ना, आप मुझे कानून का हवाला दे देना सर। अब देखिए आप के साथी आपके साथ खड़े सर, वो एक साथी हट गए उनसे कि वो ब्रांच भी फाइल नहीं हुआ, वो प्रोसीजरल मैटर है। नहीं सर वो अच्छा वो इतने नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं तो इससे दूर ही हो जाता हूँ क्योंकि प्रोसीजर कंप्लाई नहीं हुआ। अब हम आपसे अब आप कह रहे हैं कि कानून को ना आप अप्लाई करें। सर मुझे 1 मिनट दीजिए। प्लीज आप पता नहीं क्यों नहीं आप अपना व्हाई डोंट यू हेल्प योरसेल्फ। सर शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा। मैं समझ गया हूँ, आप सिर्फ बता दें कौन से कानून के तहत हम कर रहे हैं बस। सर अटॉर्नी जनरल साहब ने कल के नोटिस जो थे हमें कहा गया कि हमने विड्रॉ कर लिए, दोबारा जारी करेंगे। मुझे नहीं
मेरे सामने नहीं कहा, मेरे सामने ये बात बिल्कुल नहीं हुई है। नहीं, दोबारा जारी करेंगे। नोटिसेज है, उसका एक प्रोसेस है। सो अगर वो विड्रॉ करना चाहे, सर विड्रॉल के मतलब है कल की डेट। अरे हाँ ना, वो कल की डेट, तारीख जो थी वो गुजर गई, तो नई डेट आपको देंगे ना। यही बात हम कह रहे हैं सर, जितने नोटिस अब तक जारी किए गए हैं वो तमाम नोटिस इलेक्शन के बाद बुला लें साहब, बस इतनी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों को इलेक्शन के बाद। बात तो करने दीजिए। Attorney General has right of audience in the courts of Pakistan before every lawyer even. Ji. My lord, yesterday I had given this undertaking, which is duly recorded in your order. And it continues. Yes, it continues. It is not time related. Yesterday it was erroneously reported in national media. I also found out that the notices have been withdrawn. Notices can't just be withdrawn. वो आप जो मर्जी करें, हमें नहीं पता. So वो date may be changed for the new date. Meeting जो भी होगी. Yes. So the undertaking. देखिए, I have been repeatedly requesting the media. At least I don't sit on orders, issue them after months. We issued the order yesterday. I mean, late hours we sign it. Even we would try to take some time कि कोई typos वगैरह ना हो. But we issue it for this very reason. Please read the order. If somebody doesn't even bother, I mean, you know, the standard of everybody likes to be more holier than thou. If journalists don't bother to go on the website, and it was uploaded on the website at pretty early in the day, and the following day the newspaper still misrecords it, we can't help it. Because so much happens when you're talking. I mean, you are saying something, he's something, someone may think this is the order of the court. We may ask a question, doesn't become the order of the court till we dictate the order of the court. So I keep requesting the journalists, please read the order. You can criticize us that there was no order uploaded, so we understood this. But that is not applicable when, I don't know, I try to dictate all orders in court and we try to sign out the orders, uplink them where we are important orders which have people are interested in. Not every order gets uploaded for obvious reasons. So इतना अगर कोई ज़हमत नहीं करे, मैंने तो पढ़ना ही नहीं, मैंने काम ही नहीं करना है, तो अब क्या करें हम? I can't force someone to do it. शहजाद साहब, ये जरा हमें थोड़ा सा आप भी हमें गाइड कर दीजिए इस बात पे. What are your views on this? Since we have requested you. It's as expressed yesterday. The Supreme Court Bar Association has always maintained that criticism on judgment and a fair comment on the judgment is welcome, because that paths that actually helps us, all of us, improve. But if we come out with stories which are absolutely out of the blues and have no merit in them, then obviously that has to be checked. And particularly the new medium that we have, that vlogs and that YouTubers, I don't know what to do with them, but they are actually saying anything that they want to say, and that cannot be permitted. But that has to be somehow checked, and especially if we come out with fantastic stories about our honorable judges, that is not tolerable, and that is what we maintain. That is what we will always maintain. Criticism is welcome. They can always criticize the judgment, but beyond that, it is uncharted territory. They cannot be allowed to go there. One thing which nobody has addressed, is the truth. It's when you talk about the freedom of the press, does it mean it can print lies? I don't know. I'm just posing these questions. मैं से इसका अब जरा बात करने देना. तो one aspect has not been addressed at all, and I've been advocating. I mean, I keep saying truth will set us free. It's a fundamental pillar of not just Muslim faith, but virtually of every faith in the world. The truth of what we do in courts, we strive towards the truth. What lawyers help us strive towards the truth. What a good journalist does, help us go to the truth of it when it is missing. So truth has gone out from the equation altogether.
I don't know, because there are 7 restrictions. I would rather not go into the restrictions part, but at least we should stick on the truth part of it. That was what my Lord's judgment order of 20th of August. This is a matter which orders are very difficult to pass orders on. But it actually points out towards that. Your Lordship referred to Article 227 in the order of the 20th of August. It is reported in 2021. 1602, I believe. 2021 SCMR 1602. That is where the 2-member bench judgment was reported. And it actually, essentially, that's what we are saying. There cannot be a bar on reporting what is true. But even if it is very offensive. Yes, because then the truth is the best defense to whatever proceedings come against it. But the norms are that the language should be temperate. Yes. But Your Honor, what has been happening for the last 2-3 years, for me as a very humble lawyer of this court, it's very, very disturbing. And particularly how to regulate this and demonizing of the judges. Law let's remove judges. I'm talking generally. Even if it's a story nothing to do with judges, isn't a journalist required to be truthful? And what I've again seen, they will make one statement today. I'm not putting a finger on anyone. Completely exposed, completely wrong story. They don't even have the courtesy to do a retraction. This was a wrong story. And because, I mean, you know, I think at the end of the day, societies crumble if truth does not survive. I mean, that's what happened, because immediately after the court proceedings, the media was sort of exploded with the idea that the notices have been ordered to be withdrawn. And the Pakistan Bar Council took me by, I was scolded because we actually went out. No, now we have one up. We are doing live broadcast. We are grateful, but Mr. Kalpe Hassan is sitting right behind me and watching me, because he said we made a categorical statement in a press conference saying that criticism is welcome, but beyond that, the bars will not tolerate. But we are attending to another matter of the truth of a matter. I mean, it may be very harmful, it may be very hurtful, but it's true. At least that is no longer, I mean, everybody expressing opinions. I mean, what I'm worried about is that even today, nobody is saying, sir, we printed a wrong news, notices were never withdrawn, and it's a misreporting of the Supreme Court proceedings. Who is going to attend to that? Sir, बात ये है, it is for them to, अच्छा, एक दूसरी बात भी आपको बता दें. अब वो भी बात खत्म होती जा रही है. Do you know the reason why the Prophet was sent, which says, the Holy Quran says it, because of his ikhlaq? Yes. I mean, courtesies have gone completely. I mean, this is a central pillar of the faith. Yes. I mean, I was sent to perfect your akhlaq. I mean, there are hadiths on this. So that thing, I mean, it's not that we deprive people to speak, but at least one person's, this is also small courtesy. There are big courtesies and small courtesies. I mean, the kind of things, I don't know. I mean, the kind of arguments you can open BBC, they very strongly disagree with each other. Yes. They don't become abusive. Here, TV channels kind of enjoy, ratings are going up, making money. Fine, if this is, it's all connected with the truth. It's committed morals. I mean, you can disagree with each other, absolutely disagree. I don't agree with your point of view. I mean, we judges, we disagree with each other. We don't start fighting with each other. It's not being criticized at all. Anyway, what is the solution in your mind? We can't reform society. That's not our job. We can just raise certain questions. There are 3 distinct matters here. One of them is देखिए जहाँ तक लॉस का है ना वो it is equally applicable to all the citizens including the journalists. The defamation ordinance है, contempt of court है, ये तो सब पे अप्लाई होते हैं. उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये सिटीजन पे होगा ये जर्नलिस्ट पे होगा, वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल है. इन दिस केस आपका क्या मौक़िफ़ है कि इसको जैसे हैदर भाई साहब कह रहे हैं कि जी हम कोई डायरेक्शन दें लॉ बनाने पे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पे, उस पर आप असिस्ट कीजिए ना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार के what can be done
in this case. ऑर्डर 2015 में वो है, उसको अगर उसी को देख लिया जाए या वो पैमरा का है ना, that has been made under the law. लॉ के अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो प्रिस्क्राइब है, वो तो उनका पब्लिश किया हुआ है, एज एनेक्स है वो लगा हुआ उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है पैमरा लॉज के अंदर. तो ये देखने वाली बात को आगे बढ़ाते हुए अब लीगल प्रैक्टिशनर्स क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें कैनन्स ऑफ प्रैक्टिस हैं पूरी लगी. अब जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है, यू नो, अब हम आई डोंट वांट टू बिकम अ रेगुलेटर, so Heather Vaid Saab wants time, so maybe you can also assist and look into this aspect of whether we actually intend to file a concise statement. प्रिंट मीडिया के लिए भी है, प्रिंट मीडिया का भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंदर भी लगा हुआ है वो CPNE वाले जो. To this honorable court's judgment that code of conduct was actually framed 2014 Supreme Court PLD. कभी ऐसा हुआ है कि जी कोड ऑफ कंडक्ट में मतलब यहाँ तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, अगर वकील कोड ऑफ कंडक्ट अबाइड ना करे उसकी लाइसेंस रिवोक हो सकती है, जज को फारिग किया जा सकता है. ये कोई ऐसी कतगन पैमरा में तो है सर, पैमरा में वो तो क्योंकि वो उनके हाथ में उनका बटन है, उसमें शो कॉज भी है, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस बटन होता है ना, वो कर सकते, प्रोस्क्राइब भी कर सकते हैं वो. अब ये बातें हमारे चले आप इन पे नोट कर लें. न्यूज़पेपर में भी है, डिक्लेरेशन कैंसिल हो जाता है उसका भी. इस मुल्क के अंदर PPO भी रहा है, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, जिसके जरिए से क्या कुछ हुआ वो आपके इल्म के अंदर. आपने शायद पढ़ी नहीं, किसने किताब लिखी थी पहली मीडिया लॉज ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है? मैं जवाद जी, जस्टिस जवाद ने लिखी थी, उनकी भी किताब है. पहली मैंने जिक्र किया, पहली मेरे मास मीडिया लॉज इन पाकिस्तान, जावेद जफर जी. आई डोंट नो, मैं गेस नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता. 97 में शायद सर किसी में भी लिखा हुआ ना. ये मैंने पूछा था, आप ही ने लिखी हुई. जावेद जबार साहब ने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिटिकल, अच्छा, मगर सारे मीडिया लॉज जो कलेक्ट किए थे मैं समझा कोई दो दूसरे से, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया का इशू है. नहीं, वो कलेक्ट है. PFUJ इज हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है. अगर इनको इजाजत दे दीजिए कि ये इंटरव्यूनर बन सकें. पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट. इनको ऑलरेडी नहीं नोटिस दिया हुआ है? नहीं, इनको नहीं गया हुआ है नोटिस. अच्छा, अगर आप कोई चीज फाइल कर, आप क्या PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन, आप उसकी क्या है अपना इसमें ग्रामी? जी, अफजल भट्ट मेरा नाम है जी. और आप क्या हैं? मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट. पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, PFUJ कहते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट है या सब है? सब है इसमें एवरीथिंग. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कब शामिल किया आपने? पहले तो प्रिंट का था ये खाली. यही हमने फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा हिस्सा शामिल हो गया. जी, आप कुछ कहना चाहें, आप लिख के तहरीर देते हैं, अगर कोई अभी बात करना चाहते हैं इन जो मौजूदा केसेस उनके मुतालिक हम सुन लेते हैं आपको. इसमें ऑनरेबल मैं कोर्ट से मेरी 2-3 रिक्वेस्ट हैं. पहली बात तो यह है कि हम बहुत क्लियर हैं कि तनकीद में और ट्रोलिंग में बड़ा फर्क है. तनकीद को हम जायज समझते हैं और ट्रोलिंग को जुर्म समझते हैं. एक तो हमारी वाले से ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि FIA ने इस हवाले से ट्रोलिंग और तनकीद को मिक्स ही कर दिया है और इस केस को वो दूसरी तरफ ले गई. ऐसे लगता है कि जैसे ये एक जर्नलिस्टों पर अटैक के लिए ये किया गया था, कोई ट्रोलिंग रोकने के लिए नहीं किया गया था. मीडिया जुडिशरी को आमने सामने कर दिया को पूरी दुनिया में ये हमसे भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई अचानक ये क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में. तो एक तो FIA को ये डायरेक्शन जारी होनी चाहिए कि ट्रोलिंग और तनकीद को अलग कर दे प्लीज. वो तो अंडरटेकिंग हमने दे दी है. ठीक है, नहीं जो नोटिस जारी हो रहे हैं उसमें कम से कम. अब मैं एक नोटिस मैंने देखी नहीं, उसकी शक्ल कोई मुझे उसकी शक्ल ही दिखा दे. सर अभी सर ये CMS दी है, यार अलाउ कर दे जरा प्लीज. आप देखिए ना थोड़ा, अब आपके सदर बात कर रहे हैं, आप इनके ताबे नहीं हैं. अच्छा सर, जरा आप बात तो कर लेना पूरी. हाँ अच्छा जी. तो
ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے بالکل ہم آپ کو یہ نوٹسز جو بھی جاری ہوئے ہیں, کافی لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے ہیں, دیکھیں نا وہ نوٹس کی بات آئے تو ہمارے سامنے نا, پھر اس پہ ہم آرڈر کر لیں گے نا. ابھی آپ کچھ اور بات کریں نا, وہ باتیں تو آپ نے ساری سن لی نا, نوٹسز والی باتیں. 184(3) میں ہم جائیں گے نا, پھر آپ سوموٹو اختیار استعمال کریں گے نا, تو سمجھے نا, اس کے لیے کمیٹی کے پاس جائے گا. یہ سارا آپ کو بتا دی ہے, آپ پھر وہی بات, ہر آدمی وہی بات کر رہا ہے. یا آپ اپنے باہر جائیں گے کہ میں نے تو سپریم کورٹ کو بات کر دی تھی, سارا ملبہ ہم پہ ڈال دیں گے. نہیں یہ ایسے نہ کریں نا, یا تو کہ ہم قانونی, ہماری تشریح غلط ہے, ہماری قانونی فہم غلط ہے. بار بار ایک بات کو دہرانے سے کیا اس میں وزن بڑھ جاتا ہے. اٹارنی جنرل سے کم از کم یہ انڈرٹیکنگ لے لیں کہ الیکشن کے بعد تک جو ہے, کیونکہ ڈیوٹیز ہیں جرنلسٹ کی. صاحب آپ کچھ نہ آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, ان کو بات تو کرنے دیں. آپ سر اس میں ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, اور میں آپ نے میرے خیال میں پریس ان چینز وغیرہ جو ہوا ہے, گزری ہے صحافت پہ, آپ نے پاکستان تاریخ سے واقف نہیں ہے. واقف ہے, کوڑے لگے, جیلوں میں گئے ہیں, بالکل آپ تو ایسے برپا ہو گئے کہ نوٹس سے بھائی جا کے پتہ نہیں کیا کہے گا. آئی ڈونٹ نو, مطلب سر بیسیکلی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ. میں نے آپ کو کیا کہا, میں آپ کو دوبارہ کہہ دوں, ہمیں بھی نوٹسز ملی ہیں. ہم نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں لیے تھے, ہم چلے گئے تھے نوٹسز کے لیے. کل پولیس والا مجھے کہہ دے کہ جی آپ کے محلے میں قتل ہوا, آ جائیے, میں چلا جاؤں گا. نہیں سر, ہم اس میں بھی پٹیشنر تھے جب آپ کو نوٹسز ہوئے تھے, اور ہمارے لیے آنر کی بات تھی. آپ جب لے آئیں گے دیکھ لیں گے نا چیزوں کو. ہم ابھی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, کل خبر لگ جائے گی. سر یہ فائل پڑی ہے آپ کے پاس, ہمارے دوستوں نے دے دی ہے. اب یہ جائے گی, اچھا سن لیجئے نا, یہ جائے گی, اس پہ نمبر پڑے گا, پھر پیش ہوگی کمیٹی کے پاس. اگلی بات کریں سر, یہ سی ایم اے ہے سر, ابھی آپ کورٹ الاؤ کر سکتی ہے. سی ایم اے ہے, اس کو ریٹ میں کنورٹ کر دوں. میں نے آپ سے اتنی دفعہ بولا ہے اس کو. سر اصل سارا ایشو سر کالا نوٹسز کا ہے. وہ سی ایم اے جائے گی نہیں کمیٹی کے سامنے, پھر وہ کہے گا ظاہری بات ہے سر, سی ایم اے نہیں جائے گی. سب سے سینئر صحافی کون ہے جی میں تو اس وقت پریزیڈنٹ کے طور پہ سب سے سینئر, مجھ سے صحافی سینئر کون ہے ادھر عدالت میں؟ جن کے بعد نہیں, یہ بھی بہت سینئر ہیں. یہ بھائی آپ کو پتا نہیں ہے کہ پریس کے ساتھ ہوا گیا پاکستان میں, شاید آپ بھول گئے ہیں. میں کافی میں نے کیونکہ کنسیڈر کیا تھا, وہ ضمیر نقوی صاحب نے کتاب لکھی تھی پریس ان چینز, ضمیر نیازی صاحب نے لکھی تھی پریس ان چینز. ہاں ذرا پڑھ لیجئے گا اس کو ذرا. کوڑے لگے ہیں, مطلب کیا کیا نہیں ہوا ہے, آپ کیا کیا ظلم نہیں ہوا. سر یہ پی ایف جے کی بڑی تاریخ ساز ہسٹری ہے, بھی ہے نا, اور پریس فریڈم کے حوالے سے کل بھی ہم کام کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. میری صرف ایک ریکویسٹ ہے. اچھا آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. جی, جرنلسٹ جھوٹ لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, جھوٹ کرائم ہے سر, کیسے لکھ سکتا ہے؟ نہیں, کرائم تو نہیں ہوتا ہے جھوٹ لکھنا. یہ آپ کی بات غلط ہے. نہیں تو اگر وہ لکھے تو کیا ہو؟ کچھ نہیں ہونا چاہیے کاروائی. آپ دیکھیے, ہم اپنے آپ کو ابو دی لا نہیں سمجھتے. لا کی بات نہیں ہے نا, لا تو وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے, وہ ریٹریکشن ہوتا ہے نا اس کا. جھوٹ لکھنا کوئی لا میں ایسا اسپیسیفکلی نہیں ہے, تردید یا معذرت. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ قانون میں کو ممانعت ہے, اس لیے کہ اخلاقیات بھی ہے. یہ باتیں اخلاقیات کی آتی ہیں جی, یہ سیلف ریگولیشن کی آتی ہیں. اگر آپ کو جرنلزم کو سٹرونگ کرنا ہے تو یہ آپ کو ہی سوچنا ہوگا کہ کیسے بہتر کریں. کل کوئی اخبار میں خبر لگا دیتا ہے کہ پاکستان کی آبادی 3 کروڑ ہے, غلط ہے نا؟ غلط ہے. اس پہ تو کوئی یہ نہیں کہ کوئی قانون توڑا ہے, کچھ ہے, جھوٹ بھی ہے, ٹھیک, مگر رہے گی بات. کیا آپ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں کچھ کریں کہ ہاں یہ غلط ہے, میں نے اپنے صحافیوں کے خلاف ایکشن لیا, یہ بھی پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ نے ممبرشپ اس کی کینسل کر دی ہے. یہ ہمارے ہاں پریس کلب میں بھی اور پی ایف جی میں پورا پروسیجر موجود ہے. اگر کوئی جرنلسٹ اس طرح کی خبر دیتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کی کمیٹی بنائی جاتی ہے, اور پھر اس کو اکارڈنگ ٹو اس کے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ بتائیے نا کیا کرتے ہیں. جی بتائیے نا. پھر جرمانہ کرتے ہیں, بعض ممبرشپ سسپینڈ کر لو, میری ممبرشپ سسپینڈ, خدا حافظ, مجھے نہیں چاہیے ممبرشپ. پھر کیا کرتے ہیں آپ؟
देखें मेरा नहीं ख्याल कि आप बताएं ना, देखें आप पे बात आई तो आपने कहा मेरा ख्याल नहीं, हम कभी ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कहे कि भाई मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए, मैंने कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप मेंबरशिप कैंसिल करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसको नुकसान क्या पहुंचता है? जैसे भी चलो अच्छा मैं कल एक यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं हूँ मेंबर आपका। फर्क सर पड़ता है, बातें सोच जब कोई भी बॉडी, ये देखिए ये फोरम तकरीर करने का नहीं है, अगर आपको कुछ कहना है लिख के दीजिए, ठीक है, हम आपको इजाजत देते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि फिर 8 तारीख तक कम से कम, जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, कम से कम सब लोगों को उस हद तक FIA को आप इंस्ट्रक्शन दें। अब मैं कोई बात समझे नहीं ना, ये बार बार दोहराने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लिख के भी दे देते हैं, आप जो रिक्वेस्ट आप वो लिख के तो दे दीजिए और उसको कन्वर्ट कर दो एक्युमुलेटिव फॉर्म में, इसमें लिख, अभी टाइम है इसमें। ओके सर, हम सर लिख के देते हैं। रिक्वेस्ट आपके केस हमने करवा लिया जी, थैंक यू वेरी मच। क्रिमिनल 48/2020 और ये दूसरा कौन सा केस है? ये वो कंटेम्प्ट वाला है। आज भट्ट साहब, अगर आज आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, बड़े अफसोस की बात है, आप खड़े हैं, दुनिया देख रही है, तो इसकी रीजंस हैं। आप लोगों को जो इखलाकी ड्यूटीज थी वो उससे बहुत लोग पीछे हट गए। पाकिस्तान में बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। ढूंढ ढूंढ के बुराई को, अगर हर मुल्क में बुराइयां हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है बुराइयों को ही हाईलाइट किया जाता है। कितनी अचीवमेंट हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रही है, कितने जवान हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, कुछ हमें नहीं पता। हमारी कैंसर की बीमारी का जो मेडिसिन तैयार की लियारी के एक लड़के ने की है, किसी को नहीं पता, हमें बाहर मुल्कों की प्रेस से पता चलता है कि तो कुछ बेटर इमेज भी बताए ना पाकिस्तान का। बहुत सारे मुल्कों से हम बहुत आगे हैं इस लिहाज से, लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा सब कुछ। मिलॉर्ड, एक रिक्वेस्ट है आपसे, इन कोड ऑफ कंडक्ट और मीडिया के हवाले से जो भी शिकायत यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, उसको FIA एक लाइसेंस समझे कि फर्दर प्रोसीड प्रोसिक्यूट करने के लिए। हम उनके माइंड रीडिंग नहीं करेंगे। अच्छा, एक आपका केस बता दूं, आपका सिर्फ एक केस इन्हें बताया, उन्होंने कहा क्रिमिनल ओरिजिनल P48/2020, इसके साथ कोई और केस इसके साथ नहीं है। अगर कोई है तो उसका नंबर दे दीजिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई और केस नहीं आ रहा है, वो भी हम लगवा देंगे। आप बाद में दे दीजिएगा नंबर, इसमें लिखें। अटॉर्नी जनरल साहब, इट इज माई सेल्फ, मतलब ये अभी जो JIT कौन हेड कर रहे हैं अभी? My lord, it's the additional DG FIA crime going FIA. ये जो आपने अंडरटेकिंग दी है, अगर ये आप इसको इलेक्शन के बाद सेशन रखना शुरू करते तो कोई हर्ष तो नहीं होगा। ये 4-5 दिन की तो बात है, इसमें बीच में छुट्टियां आ जाएंगी, 2-3 दिन वैसी, 5 फरवरी छुट्टी है, फिर इलेक्शन की छुट्टी है, उसके बाद फिर ये 2-3 दिन रह गए ना। जब तक ये अपनी एक पिटीशन भी फाइल कर देंगे, वो चीजें सामने आ जाएंगी ना, सही तरीके से हार्मोनाइज हो जाएंगी कि आप सही हैं, ये सही है, JIT ठीक है, क्या ट्रोलिंग हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, वो तो खुद भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे ये लोग जितने खड़े। अगर ऐसा है तो आपकी अंडरटेकिंग इलेक्शन के बाद चले जाएं, कोई हर्ज नहीं है। पॉइंट हमें देखना है, JIT क्या होती है, कानून में इसका है जिक्र नहीं है, ये सारी बातें आप तैयारी करके आइएगा, क्योंकि अभी तो हमें जब केस आएगा आई कैन ओनली थिंक अलाउड कि ये सारी बातें सवाल उठेंगे। 8 को इलेक्शन है, उसके नेक्स्ट वीक में रख लें। 8 के बाद जो है 8 में जुमेरात है, जुम्मा आता है, तो मंगल कोई नेक्स्ट के बाद ही होगा। एहतियात से रिपोर्टिंग इलेक्शन के दौरान ये जो होगा इसका मतलब कुछ और होगा। एहतियात से रिपोर्टिंग करें। You can discuss this with any FIA director or any person who is present in this. The notices are under section 160 of the CRPC. जी 160 का नोटिस है। Notices. And which provision? 160 of CRPC. These are inquiry stage. Inquiry stage के ऊपर आती है। Inquiry stage notices. And as it is just like a call-up notice. जी call-up notice. And it's not a criminal case. Not yet, sir. Not yet. So it is only, and as I had submitted an undertaking yesterday, and so the inquiry officers are going to strictly follow what was submitted before this court. We are not asking, we are not going to stop you for the inquiry. We only say कि ये जो 5-6 दिन बीच में, इसमें 2-3 दिन वैसी छुट्टियां आ रही हैं, हफ्ते को आपकी भी छुट्टी है, फिर इतवार है, फिर पीर है,
1-2 दिन ही तो 3-4 दिन है वर्किंग इसमें, तो अगर आप 8 के बाद वाले वीक में ले जाते तो कोई चीज रुक नहीं रही. वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, neither they are stopping you to do anything. They only request for some time. In the meanwhile, they will file the petition here. The matter will go to the committee, and the committee will decide. And we will also see the constitution of JIT under the law, whatever their allegations and counter arguments made by you. इसको देख लें, अगर इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको रोकने में कोई बहुत बड़ा हर्ज है, मतलब things will not be. At this stage, if I may say, at this stage, it is only the statements that have to be recorded, nothing beyond that. What is statement? So, if there are any under 160, my lord, if there are any screenshots of any tweets which were on the Twitter which were tweeted or any. So you are saying no coercive action will be taken? Yes, yes. अच्छा, सर जिन ये तो आपका मसला हल हो गया. नहीं सर, लेकिन जिन जर्नलिस्टों ने इलेक्शंस में ड्यूटियां करनी है, अपनी दूसरी ड्यूटी के, वो एफआईए की पेशियां भुगतेंगे सर, बजाय इसके के इलेक्शंस के बाद हो जाएगा वही मसला. सर ये इलेक्शंस के लिए हम अटॉर्नी जनरल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर नहीं कर रहे. इन प्रोसीडिंग्स में तो ऑर्डर नहीं हो, लेकिन सर जिस तरह वो इंसिस्ट कर रहे हैं उससे लग रहा है कि थोड़ा सा जनरल, व्हाई डोंट यू थोड़ा सा इसके अंदर आप क्या है इलेक्शंस. आज क्या तारीख है, कितने दिन रह गए? 30th, so we had just left with 8 4-5 दिन रह गए, इसको कर दे आप कह के इलेक्शन के बाद. जरा प्रोफेशन का इशू है कि भाई दे आर रनिंग हियर, देयर आर सो मेनी स्टोरीज डेवलपिंग, बाय दे आर अनेबल टू परफॉर्म. Show some grace for the journalists also. Sir, of course they have. You should thank him, not us. They have to be professional. We are saying he's there thanking us. We don't thank us. Thank you. ठीक है, अब ये सर आपका थैंक यू यहाँ पर अदा करेंगे, उनका चाय के कप पे करेंगे. हमें शुक्रिया नहीं करें, इनको शुक्रिया करना है तो करें, अगर आप करना चाहें. सर नहीं, इसमें लिख लें, इसमें लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ठीक है सर. आप इसमें पार्टी बनना चाहते हैं ना? जी जी. अच्छा, They'll have to. पिछला ऑर्डर कहाँ गया? वैसे ये जो डिस्कशन हो रहा है ऑन जनरल पॉइंट्स, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी हेल्ड ऑन एवरी. This is a serious discussion where freedom of expression, truth, you heard speech. You know, every country deals with it differently. I mean, sort of in Thailand, there's one very severe kind of law, which is their country. That's right. In America, is the First Amendment. Here, we have 7 restrictions in the freedom of expression. In Europe, you can't even say something. Exactly. You know, it's called something denier. So it's a variable thing. And I always stress most towards the truth. I don't know why, but that's my personal thing. It doesn't, the law doesn't really say that. इसमें लिखिए कि कल का ऑर्डर का है. हाँ हाँ, अच्छा शुक्रिया. Abdul Qayyum Siddiqui points out that the 4 journalists who, in the order passed yesterday, he had forgot to mention, in yesterday's proceedings, notice. He had forgot to mention the attack on Mr. Absar Alam, who was a journalist, and as such, paragraph 2 of yesterday's order may be read to include his name as well. Full stop. Order accordingly. So it extends the report that you have to submit. It will also apply to Mr. Absar Alam. इसमें लिखिए, Mr. Afzal Butt states that he is the president of the Pakistan Federal Union of Journalists and wants to become a party to these proceedings. Full stop. He may move an appropriate application and may also submit suggestions as to how to proceed further with these cases. Full stop.
आपका नाम लिख दें प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे आपका नाम प्रेसिडेंट का कैसे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन या प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट states that they will be filing petition with regard to press freedoms and the difficulties being faced. Full stop. Office to immediately number the same and to register it as a constitution petition under Article 184(3) of the Constitution, comma, number it and place it before consideration of the committee, capital C, constituted under the Supreme Court Practice and Procedure, bracket close, Act, comma, 2023. अब हम कह तो नहीं सकते मगर इसी के साथ ही वो कनेक्टेड हो जाएगा करना चाहते हैं आप पिटीशन फाइल करना चाहते हैं पार्टी बनना चाहते हैं हमारी पिटीशंस में पार्टी पिटीशन फाइल करें नहीं अगर आप इनके पिटीशन में पार्टी बन रहे हैं तो फिर तो वो खुद ही फिर तो अलग एप्लीकेशन होगी अगर आप अलग उनके साथ आना चाहें तो आप भी बन जाए उनसे पार्टी 1 2 3 4 मतलब अलग भी आप करना करो ना सेपरेट पिटीशंस हो जाएंगे वो जरा जैसे भी आप लोग कर रहे हैं फिर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं वो पता नहीं किस केस में एप्लीकेशन दे रहे हैं पुराने में एप्लीकेशन दे रहे हैं आपने यहाँ तो कोई है नहीं अभी इसी केस में बने हम आपके लिए वो उसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देंगे आपके दोनों दरवाजे खुले इस तरफ आना चाहें उस तरफ आना चाहें जैसे भी सोच समझ के आप कर लीजिए और आप अपनी फाइल करेंगे 184 में अच्छा फुल स्टॉप आपने क्या कहा था हाँ वो लिखिए number of concerns were addressed and learned Attorney General reiterated the undertaking given in the court and further on the request of the journalist stated that FIA that the matter meeting of GIT that matter regarding journalists will not be taken up or proceeded will be taken up or proceeded by FIA before the elections जी ठीक है and thereafter all right ठीक है जी ठीक है it's your undertaking not our order it's your undertaking और अगर नई डेट होगी तो उसकी नई नोटिस इश्यू होगी जाहिर है पुरानी डेटें तो गुजर चुकी हैं उन नोटिस follow up इसमें लिखिए अब अगला लिखें follow up notice Mr. Heather Waheed he learned Mr. Heather Waheed follow up notice if follow up notices are to be issued they will be issued after the elections ठीक है ना फॉलो अप तो करना पड़ेगा डेट Mr. Heather Waheed council in CP number 27 of 2022 stated made submissions number of questions were raised and he stated that he will be attending to them if some time is granted by filing a concise statement and requested that the matter be adjourned to a date after 2 weeks. How much time did you want, Mr. Heather Waheed? That's fine. Okay. Even less than that. Okay. Full stop. आप लोगों को भी बाद में चाहिए. All present. Also stated that this case may be adjourned to a date after the elections. Yes. And which will also grant them time to file the referred to petition, whoever wants to do so. कुछ और रह गया बात? And on a lighter note, my friends from journalist community might bear in mind the observations by Her Ladyship Justice Hilali.
in the meantime. Sir, Attorney General is saying this about Judge of the Supreme Court. This means it is going to have a chilling effect, and Justice Musarrat Halali's statement is going to be used against us. Please. ये देखिए, ये आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट की आपने 4, 5, 6 वायलेशंस कर दी हैं आज. It should not interfere in cases where you are not. अब आप, हम जिक्र नहीं करना चाह रहे थे, मगर आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे पास ऑलरेडी था. और ये मैंने पढ़ा था, मैं इसका आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था. आप इनके हाथ ना लग जाए आपके दोस्तों के. ठीक है, तो then we will give a date. Zara, let us see, because a number of important cases are coming up. I don't know when we will give a date. अगर खुदा ना खासा कोई फर्स्ट वीक ऑफ मार्च सर, अगर कोई फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, किसी को इतराज है? I have no objection. No objection, sir. Okay, as suggested. ठीक है सर. फरवरी का लास्ट वीक उसकी वजह यह है कि शायद आपस में बात करने ना, हमें कोई इतराज नहीं. आपने कल लगाए, हम कल लगा देते हैं. फरवरी के लास्ट वीक में प्लीज गिव अ डेट. जरा कंसेंसस से भी कर लेना आपस में. फरवरी का लास्ट वीक सही रहेगा. फरवरी का लास्ट वीक. किसी को इतराज है लास्ट वीक का? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. सही है भाई, आपका सूली मौक़िफ़ है. फरवरी के लास्ट वीक में अब टॉस कर लें, आप पे छोड़ देते हैं सदर साहब. फर्स्ट ऑफ मार्च. हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ठीक है. चले, देखिए अब आप, इज द प्रेसिडेंट as suggested, adjourn to a date in the first week of March. Thank you.